CEO खुद शैतान की झाड़ है एक्चुअली सारे मसले में, तो वो मैं उसको ये कहता हूँ तो मुझे फिर फायर कर देता है वो तो वैसे तो ज़्यादा पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया, बट आई विल टेल यू द काइंड ऑफ वर्क दैट आई हैव डन, राइट. सो आई हैव बीन इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, IP डेवलपमेंट, ठीक है. सो आई हैव नॉट बीन अ कंसल्टेंट, मैं प्रोफेशनल सर्विसेज में नहीं था. आई वाज एक्चुअली डूइंग कोर प्रोडक्ट डेवलपमेंट starting from all of my jobs. Okay, so I'm a hardcore software engineer developer, but then around 2006-7 time frame I moved towards technical management. So I do engineering management. So I have, I understand software engineering cycles really well, and in this current company we are a full stack company. Okay, so not only we do software engineering, software development, we also operate, deploy and run those applications as well. And because we work with the public sector ministries in Saudi Arabia, we can't go to public cloud. So we have our own data center, you can call it private cloud. Okay? So we cover the whole stack: operations, data center, network, storage, cyber security, application engineers, database engineers, help desk, level 1, level 2, level 3 support, whatnot. So we cover everything. Okay? And we work with many ministries. So it's not just only Ministry of Interior, Ministry of Education, Ministry of Water and Agriculture, Ministry of Justice, like for example, and Ministry of Hajj and Umrah, inke IT operations that are now with us. Ministry of Transportation, Ministry of Finance. So there are other companies, but Ilm is a premier company. So we are public now. We are on Tadawul, which is Saudi Arabian stock market. So we floated 33% of our stocks shares on Tadawul. But we are owned by PIF, Public Investment Fund. So Public Investment Fund, जो है ना वो Saudi Arabia का sovereign fund है, which is huge. So we are one of their companies, and we're their flagship IT company. Anyways, when I went to Saudi Arabia back in 2013, I've been there almost 9 years. I was pleasantly surprised by the amount of automation they had done, digital transformation. They had a lot of digital service. You don't have to go anywhere. आपको जाना पड़ जाए तो ख्वारी लगती है, no doubt. यानी लेकिन यह है कि there is a lot of digital services. अब तो ये e-visa और ये चीज़ें, they are pushing it a lot. And they have built systems जिसकी वजह से ये करना आसान है. So for example, they have a portal. So we have 150 services running in production. And a service can be a national level platform, can be maybe a small or medium sized service. And it's a set of services, that's what I mean. So we have a portal where every citizen and expat can sign in and they have an account. And the total population is 36 million. We have 20 million active accounts. And you get all kinds of passport, traffic related, visa related services available over there. So, so we work at scale. That's what he was trying to say. And when we did, जब Arab Spring आया था 2011-12 time frame में, so they asked us to implement unemployment benefits program. So now we did that. Then we did national subsidy platform, citizens account. There's another national level platform. So we have many services at scale, alhamdulillah. So when we do concurrent performance testing, we do 50,000 concurrent users. And so just running the test itself is it's not easy. Okay. Anyways, so we will talk about different topics. I'll try to go fast, so you will have to keep up, because my problem is otherwise I go very slow. We have to cover a lot of ground. I'll start with some basic stuff, and then I'll take you to some specific topics. Okay. So normally, when I talk to people, and my advice to especially young professionals is that
There are 4 areas that I normally classify data as. That's my experience. You can go talk to Uwais Bhai or talk to another guru and he will tell you, hey, I classify it in a different way. And so he was talking about Peter Drucker, right? So he has his own classification. But this is how I classify it. So you go to, you gotta have some technical skills, right? So we are talking about skills now, okay? So for technical skill, you go to university, you become a software engineer, you go to medical school to become a doctor. So you can acquire those skills. And you can go to university to do that. But then there is another set of skills which we normally call soft skills, but I call them leadership skills. Okay, it sounds better. That doesn't mean you are a leader, meaning you are leading people. That's part of it. But you can be an individual and can have those leaderships. So what are those skills? We call them soft skills also. Number 1, responsibility. Okay. Second is communication. Okay, so we can write more teamwork, right? We can say collaboration. Same as teamwork. Presentation skills. Negotiation skills. Okay? Can be anything else? With suggestion? There can be more. Okay. So the thing is, you can go to a university to get these skills, and you can also learn these skills. You can acquire these skills. So for example, when I was in IBM, they put some of the guys in this leadership excellence set of courses. So I was selected by my director, said, yeah, come on, go attend. So over a duration of a year, every month, for 2 full days, we would attend one of these classes. So there were 14 actually. So I should have actually put 14 over here, but I've forgotten all of them. Number 1, the first class was responsibility. We spent 2 full days talking about responsibility. And it's, what did we talk about, right? So good leaders are highly responsible people. And if you see around, good leaders, they are always highly responsible. Meaning, there are different dimensions to it. आप कहें यार, मैं जो हूँ ना अगले बंदे के ऊपर नहीं डाल दूँगा. You will take responsibility. The buck stops at you. I will take care of business. आपने किसी दोस्त, आप शहर से बाहर जाना, पीछे कोई काम करना हो, so you will request a friend or a relative who's responsible, not irresponsible, right? So because you have hopes that yeah, this guy is responsible, he will take care of it. Okay? So, but the point is, you can learn these skills. वैसा गप लगा रहा था, मैंने कहा कि यार जब तुम इंटरव्यू करते हो हायरिंग प्रोसेस, हाउ डू यू फिगर आउट कि वो बंदा खानदानी है? क्योंकि खानदानी होना जो है ना, उस खानदानी लोगों में ये क्वालिटीज़ थोड़ी सी वो पीछे से सीख के आए होते हैं. ठीक है, खानदानी होने का यही मतलब है. वो कहते हैं कि वो एक बुजुर्ग थे, उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी, बड़ा खचपच बच्चों के मसले ये वो. तो ख़ानदानी होने का मतलब ही है कि आपका ख़ानदान है एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज इश्यूज़. यानी आप अकेले दुकेले हैं तो ख़ानदानी नहीं है. जब आपको रगड़ा लगता है, when you go through hard times, that's when you build skills and you become rigorous, right, and tough. So the thing is, you can acquire these skills, but you gotta have desire to acquire those. So you need to, and these are very, very important. So these skills are also called, by the way, behavior skills. Okay, so now I remember a few more. Okay, so there was something called situational leadership. How do you lead people? Now this is, a more regular way. If I'm a father, I'm head of the household, how am I leading my family? So based on the situation, so I'm dealing with a 10-year-old, 9-year-old, beta jaake wo kaam to karo, मैं game खेल रहा हूँ. Let me count. Let's see how fast you can go. Yeah, but I can't do that to my wife, right? 1, 2, वो एक जूता आगे से लगाएगी. So you have to see the person, the situation, and you have to lead it like that. Right? So if you are working with someone who's highly motivated, but he doesn't have the right skills, so you have to handhold him a little bit.
But you don't have to, encourage him. You just have to hand over because he's already motivated. But if you have somebody who's senior who knows how to do things, but वो धक्के खा के ना मर गया वो, तो उसको आपको मोटिवेट करना होगा, उसको आपको काम नहीं सिखाना. So situation leadership यानी एक मॉडल है. There is another one, lateral thinking about creative thinking. ठीक है. So these are all soft skills that you can learn. You can acquire them, and I'll highly encourage you to pay attention to these to become a well-rounded professional. ठीक है. Third category. Normally, I strongly believe project management is a very important skill because you have to individually manage your work. This is organization, right? आप सुबह उठते हैं, आपने ऑफिस पहुंचना है 9 बजे तक. अच्छा जी 7:30 बजे उठेंगे या फजर पे उठेंगे, वो तैयारी करेंगे, नाश्ता करेंगे, गाड़ी में इतनी देर लगेगी. ठीक है. This is project management that you're doing on daily basis. So you need to learn project management now. And it's easy to learn. It's not that difficult. Now, project management, we will talk about it, is a 130-year-old science. Okay? When they started doing mega projects like dams and bridges, metro, इस तरह के बड़े-बड़े projects करे थे, when you have hundreds and thousands of people involved, technicians भी हैं, electricians भी हैं, civil engineer, mechanical, electrical engineer, बड़ी सारी activities हो रही, you need project management to coordinate and plan things. तो गैंट चार्ट आपने सुना होगा. ठीक है. तो गैंट एक बंदा था 100 साल पहले, उसने गैंट चार्ट बनाया था. ठीक है. तो the thing is, this is a very important skill. Now, if you were born at that time and you learn project management, you would be a very hot guy. Oh, awesome man, आ जाओ, तुम्हें बड़े पैसे भी मिलेंगे. जिस तरह अभी IT वालों को मिलते हैं ना, DevOps का बंदा हो ना, उसको बड़े अच्छे मिलेंगे. FinTech का बंदा हो, इस तरह. तो उस ज़माने में project managers को मिलते थे. But now we still use project management. I think it's a very essential skill. And I'll just to give you a perspective. Agile, waterfall होता था. फिर हमने we adapted in IT agile. ठीक है. Lean, these kind of concepts. अब जो Tesla है, for example. Tesla, why are they such a awesome, innovative organization? They innovate at speed. They say they innovate at speed of thought. हर एक के पास cool ideas होते हैं. Like, how many people are actually able to execute on those ideas? Very few. ख़याली पुलाव हैं लेकिन होते नहीं हैं. But imagine as an organization or individually, you can do something about your ideas. That's an awesome capability to have. So Tesla has that, and they achieved it because they can do innovation at speed. Their speed of innovation is very high. So they can actually do something about those ideas. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में इससे पहले टोयोटा फिगर्ड आउट लीन मैन्युफैक्चरिंग. वो क्या करते थे, ये हमारा गाड़ी का मॉडल है, 1-2 साल इसको डिज़ाइन किया, इसको जी प्रोडक्शन में डालो और 4-5-6 साल ना इसको परफेक्ट करो और ज़बरदस्त क्वालिटी निकालो और वो निकालें. एक ही गाड़ी 5-5-6 साल चल रही है. ठीक है. But this is, and the whole industry adapted that. ठीक है. But it's kind of slow. On the other hand, Tesla, it's the same Model Y or Model X, ठीक है, or Model 3. But they are changing it on quarterly basis, if not monthly. ठीक है. Actual hardware in it is they are changing it. Maybe the outside looks the same. ठीक है. So they are, but यार ऐसे तो नहीं है गपशप. कोरोला है 5-6 साल चलेगी, उसकी सर्विस भी करनी होती है. ऐसे तो नहीं है गाड़ी बेच दी होगी तो आप गाड़ी को इतना चेंज कर रहे हो, आप इतने वर्जन्स को मेंटेन कैसे करेंगे? So it's not a simple thing, but they are able to do it very successfully, right? So उसके parts बनाने हैं, सारा कुछ करना है, वो सर्विसिंग है. तो they have figured out the whole life cycle. So they are able to do that. So Toyota figured out lean manufacturing, and they figured out agile manufacturing. This is what they call it right now. Okay, maybe they might have another term. Okay, so project management, I highly encourage you to not only think about project management in the sense of organizing yourself, but what are the creative ways you can do things which will give you even better results. So for example, one of the, we will talk about it, killers of productivity from project management point of view. You have heard this term WIP, work in progress, right? सुनिए. ठीक है. तो वो कानबान में
Agile methodology, the goal is to reduce WIP. Okay? Now why? Anybody? Why do you want to reduce WIP? I've already given the answer, by the way. Yeah, because it's a huge productivity killer. So they did research and they applied some queuing theory to it and figured out, okay, this is the #1 productivity killer. So as you know, if you go to PMI, Project Management Institute, उन भी पागलों को अभी जाके समझ आई ये जाल पढ़ाना शुरू किया उन्होंने 5-6 साल पहले. We had this serious issue. वो अरबी लड़के जो है ना वो जाके PMI की सर्टिफिकेशन करते थे, वापस आके ना वो एजाइल टीम्स को मैनेज कर रहे हैं. अब उनको एजाइल पढ़ाई नहीं जा रही. वो कह रहे हैं भाई पूरा ये रिक्वायरमेंट दो, पूरी वो दो, यानी सख्त फ्रिक्शन बन गए. तो हम कहे ये क्या कर रहे हो? कहते सर PM बुक में लिखा है. तो ये अभी PMI ने अपडेट किया कुछ उसको, लेकिन दिस इज द प्रॉब्लम. इफ PMI हैड नॉट डन दैट, PMI would become irrelevant. There are a few very famous things, they have become irrelevant. CMMI is one of them. So I have a master's in software engineering. I learned CMM models, capability maturity models from Carnegie Mellon University back in 1996, 97, even before graduating. When master's I did more study on it. We did certification of CMMI in our company in 2015. You get it for 3 years. In 2018, we did not renew it. It did not give us the results. I'm not saying it doesn't make sense, but they haven't modernized it. They haven't contextualized it. So what did we move towards? DevOps. It's more comprehensive for us. Okay, so anyways, the thing is, yani, you want to reduce WIP because it's a huge productivity killer. Now, all project managers should know this. You should know it. Why do we want to reduce WIP? Because context switching. You never leave incomplete work. So the focus should be start something, finish it. Okay, and don't start multiple threads. And it's not easy to do. So that's where leadership, management, you guys will have to, the seniors have to support it. Okay, so what I'm trying to encourage you is learn more deeply about project management. Look at Tesla. There is a guy, his name is Joe Justice. Okay, he's an agile guru. And he is, he has a lot of YouTube videos and he has an institute where he talks about what he learned at Tesla, how they are able to innovate at speed. You watch his videos, he talks about these 8 new areas that Tesla is working on. One of the thing was how people can come together and work in groups to get things done. हम कहना है पेयर प्रोग्रामिंग करो तो शायद वैसे कोई तकलीफ हो जाए यार 2 बंदे क्यों टाइम ज़ाया करो अल्लाह बैठो. वो कह रहा है पूरी टीम बैठ जाओ, एक बंदा ड्राइवर हो और वो चला रहा हो, बाकी खड़े हुए हैं उसके साथ. आई थिंक बाय द वे दिस इज फॉर डिज़ाइन एक्टिविटी एंड नॉट रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग. रेगुलर टास्क में तो उसमें आप कर सकते हैं इंडिविजुअली. एंड देन चेंज द ड्राइवर, राइट, एंड दे सी अमेजिंग रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ दैट. हाउ दे हैव स्ट्रक्चर्ड, यानी दिस इज अ लिटिल बिट मोर मैन्युफैक्चरिंग साइड, हाउ दे हैव स्ट्रक्चर्ड, बिकॉज वी यूज्ड टू हैव असेंबली लाइन्स, राइट, 1 task, 2nd task, 3rd task, 4th task. आप जाओ ना वो टेस्ला की गीगा फैक्ट्रीज में, तो टेस्ला गीगा फैक्ट्रीज हैव, वो Elon Musk, you might have heard him talking about the giga factories. He says the factory is the product. I didn't understand that until I heard Joe Justice talk about it. कहता है when people go visit the giga factory, one thing everybody says is that every step has a huge space. Okay, so there is a lot of space for that step. Maybe it's taking this much space. But what they don't see, or a lot of them miss, is that you don't just complete the task and send it forward. You can send it forward, you can send it backward, sideways, at angles, and they have multi-story structure. You can send it above and below as well, in many directions. And the reason they leave out the space is for future enhancements. If I need more space to enhance this step, I can do that. I have space to do that. ठीक है, so they don't have to reconfigure everything, all के चीज़ों को आगे पीछे करो, उन्होंने जगह ही छोड़ दी शुरू से. So this is a lot of innovation, right? And this, to me, this is how, project management is how you do your work in your context. You're doing software engineering. How do you do it? Become more creative. Spend some attention to it. So what do? You read books, you read blogs, you listen to some podcasts, make an interest. Software engineering, how, agile, DevOps, all these kind of things.
and have a larger view of things, okay? How you are connected in this whole work that you are doing, you know? So it's not, let's say this is dev, and this is QA, and this is like, let's say design, and this is requirements, you know, how all of this is connected together. Okay, so we'll talk about that a little bit more in a more systematic way, inshallah. After project management, there's a fourth area, which is, I say, domain expertise. So if you are working on let's say, fintech, you gotta know about fintech. I'm a software engineer, but I'm working in fintech, gotta know about fintech intimately. You know, you gotta read books, you know, things, you know, maybe certification, I don't know. If you're working on networks, gotta know networks. I don't know anything about network. I have a computer science degree. Yeah, 7 layers, that's it, khalas. But, you know, but once you are working in that domain, you gotta deep dive. Become a guru, you know, of that area. Because that will help you. It's not that, oh, my next job, I'm gonna do something else. No, let's say you are working in financial sector. You become a financial sector, health sector. You gotta know health sector. Okay, and the good thing is, it's not 1997. And now the information is available to you. So I'm encouraging you guys to become thought leaders. This is the term we use. To become, you know, champions and gurus. And I see, I've been to, I think 2-3 companies here, even in this visit, and I see a lot of other companies. Emumba is a different company. I think Owas and these guys, I'm hoping that that's the case. This is how I see it. They're giving you room to learn. If you need to join an organization, like I joined this Saudi company. I've never worked in the Middle East region. There was a reason I visited. You know, because somebody recommended me to the CEO. So the CEO was directly hiring me. So it was like a VIP position. Right? So I told him, hey, dude, you know, I've never worked in this area, and I've heard horror stories. This is what I told him. He said, no, my company is you have to see it to believe it. Oh, I'm coming. So I visited them in August. And I saw, because I talked to a few managers and directors on the phone. Oh, manager, director, rosy story. Yeah, so itne cool hai ye wo. Dr. Abdul Rahman, he's my CEO. I don't want to talk to any managers. I want to talk to 5 or 6 people, a developer, a tester, a project manager, analyst, you know, release build guy. So he assigned me a guy, and he took me, and I randomly selected those people from the team. And I realized one thing, that everybody was different. They have a different way of thinking. They have very, very good clarity on the vision of the company. And the work that this company was doing was very visible. Like you know, at my age, like 40 plus, you want to do work where you leave an impact, at least a social impact. Okay? So in our company, there's an unwritten rule. We don't do any project if there is no such social impact. It's amazing. We are for profit. We don't do any project if there is no social impact. It's amazing. So all our 150 services, they are used by citizens or the ministries to improve the quality of the life. So alhamdulillah, that's the reason I joined, and I'm working hard with the rest of the team to take it to the next level, world-class level. Alhamdulillah, we do a good job, and we are improving over time. So my point is, guys, challenge yourself. You have this opportunity, a learning environment where they are giving you room to experiment. And how do you learn? Through experimentation. And innovation is founded, you can't do innovation if you're not doing experimentation. Okay, so this is, they are willing to tolerate mistakes and failures, because failures is how you learn. I saw the pictures, right? Best performer, best. So I was just telling Doctor this morning, Dr. Mariam, that we should have a picture of the best failure of the month. There are companies, they do that. They celebrate failure, because failures need to be looked as learning assets. So MBA, जिसने भी LUM से या IBA से masters वगैरह किया था ना, वो MBA किया था. They were considered like top notch, best jobs. अच्छे रिश्ते भी उनको आते थे. ठीक है? But now we are in this age of information and technology, telecommunication. So in order to understand why we are in this age, there is very interesting work done by a lady called Dr. Carlota Perez. Okay, I forgot to put a doctor over here. She's a senior lady. She's a historian economist. She's not an IT person. She's a historian economist, and she studied last 300 years of technological
innovations and how things changed. Because technology is technology, but it changes how we live, communicate. So you all drive cars, or you took a car to come to the office or go anywhere. 100 साल पहले गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं होती थी, लोग घोड़े गद्दों और पैदल चलते थे. हमारे वाले साहब कहते हैं वो तुम्हारे दादा जो है ना, वो 2 हफ्ते वॉक करके गए मंडी से, 2 बैल खरीदे और फिर 2 हफ्ते में वापस आए. 1 महीने का ट्रिप था. बड़ा मेरे दादा ने हालांकि 1950-60s में हज किया था. वो पहले हाजी थे अपने गांव से, ठीक है. वो पैदल हो रहा है या शिप्स पे जा रहे हैं, वो तो ये बड़ी बात होती. अब नाउ इट्स लाइक काफ़ी सारे हज, मैंने खुद 4-5 हज किए हैं अलहम्दुलिल्लाह. ठीक है, तो आसान हो गया बहुत ज़्यादा. सो द थिंग इज टेक्नोलॉजी changes the way we live, the way we communicate. It defines a new paradigm. Okay, so basically Dr. Carlota Perez, her research area is paradigm shifts. So paradigm का मतलब आता है, अच्छा, paradigm का मतलब है the rules and the regulations and the ways of doing things, anything. ठीक है, यानी mobile phones. We didn't have mobile phones before, smartphones for them. Now we can't think about, living without a life without mobile phones, right? बिजली का होना. अब हमारे गांव में जाए तो उसमें दिन में 24 घंटे में 2 घंटे बिजली आती थी. वो 2 घंटे इसलिए नहीं आती कि लोगों को मिले, वो इसलिए कि ताकि पानी का ट्यूबवेल चले, क्योंकि बिजली के बगैर तो वो रह सकते हैं, पानी के बगैर नहीं रह सकते. तो वो ट्यूबवेल चलाने के लिए था. खैर एनीवेज, अब ये एसी के बगैर रहना मुश्किल है, ठीक है ना. तो ये पैराडाइम शिफ्ट्स हैं. नाउ द थिंग इज देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड इफ द वे चेंजेस, द रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज, और आप तैयार नहीं हैं उसके लिए, तो यू विल फील व्हाट दे कॉल पैराडाइम शॉक. ठीक है, तो यू हैव टू अडैप्ट, यू हैव टू लर्न. ठीक है, सो बी ऑलवेज रेडी. अब साथ हुए, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद क्यूबरनेटिस? ठीक है, सम ऑफ यू आर. कंटेनर्स, क्यूबरनेटिस, राइट. क्यूबरनेटिस कब आया मार्केट में? गूगल ने कब उसको ओपन सोर्स किया? 2014 में. वो दे स्टार्टेड इन 2004 इंटरनली, बट दे ओपन सोर्स इन 2014, 13-14 टाइम फ्रेम. यानी 8 साल हुए उसको यार, 10 भी नहीं पूरे हुए. उसने चेंज कर दिया सारा कुछ. अब जी क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन जो है ना, वो बनेंगे कंटेनराइज और ये वो. तो जब मैंने आखिरी दफ़ा कोड लिखा था, 2007 में 6 में लिखा था. आप लोग ये पैकेज मैनेजर्स यूज़ करते हो ना लाइब्रेरीज के लिए और सारी डिपेंडेंसीज. हमारे ज़माने में पैकेज मैनेजर नहीं होता. ये जावा में डेवलपमेंट करते 8, 10, 12 जो है ना आपकी जार फाइल्स हैं, वो एक ही फोल्डर में पड़ी हैं, बस यूज़ कर रहे हैं आप. ये पैकेज मैनेजर तो बाद में आए. ठीक है, दैट्स अ पैराडाइम. इट्स लाइक अ स्मॉल एग्जांपल, बट इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट. यानी वी डिडंट हैव, सो वी यूज्ड टू हैव फिजिकल. व्हेन आई वर्कड इन टीआई, we had physical machines. I used to develop software that was used for testing semiconductor devices. ये जो चिप्स बनती है ना, हम तो देखते हैं ना वो ब्लैक कलर की उसकी टांगें निकली हुई हैं, या अगर वो सीपीयू है तो उसके नीचे बहुत सारे डॉटेड वो लेग्स हैं उसकी. तो that's actually a packaged chip. जब आप पैकेजिंग उसकी रिमूव करते हो तो नीचे अंदर एक सिलिकॉन का वेफर है, पीस है बल्कि वेफर का. तो वेफर क्या होता है कि दे क्रिएट दिस लाइक बिग ह्यूज CD टाइप थिंग, very big, and they manufacture many chips on the same. अगर वो कहीं से किसी गिर गई कुछ होगी ना, तो कभी कभी मिलियंस का नुकसान है उसमें. ठीक है, तो एक वेफर पे ना बहुत सारी चिप्स बन रही होती हैं. इट गोज थ्रू इचिंग, केमिकल, डिफरेंट प्रोसेस. आपको पता है जो इसको फैब्रिकेशन प्लांट कहते हैं. दैट फैब्रिकेशन प्लांट इज सिटिंग, दैट फ्लोर, लाइक देयर इज अ ह्यूज फ्लोर, इट्स सिटिंग ऑन काइंड ऑफ स्प्रिंग्स, ताकि जो गाड़ी गुजर रही है ना दूर से भी, तो उसकी वाइब्रेशन से वो हिले ना, क्योंकि वी आर वर्किंग एट नैनोमीटर, राइट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वो टीआई में ना एक दफ़ा ये था कि तो आई यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सॉफ्टवेयर, बिल्ड सॉफ्टवेयर. वो जो टेस्टर्स आते थे, दे वुड हैव प्रोब्स एंड दे वुड कनेक्ट टू द वेफर, इंडिविजुअल चिप्स, कलेक्ट द डेटा, देन माई सॉफ्टवेयर वुड एनालाइज द डेटा. ठीक है, ओके. सो what she did was she studied last 300 years of technological changes and advancements and how it changed and brought new paradigm shift. ठीक है, तो what she identified was that there are 5 cycles. We are in the middle of the 5th one. ठीक है, and maybe we'll go to the next slide, I think now. And each revolution, historians say history repeats itself.
ठीक है. So these cycles, they followed the same pattern, ठीक है. So and it's a 3-phase pattern. So let's look at it quickly, ठीक है. These are the 3 phases. So each revolution, there is a high demand in the market, and people want to come up with interesting solutions to, to solve the problem, to make money, ठीक है. तो जिस तरह आजकल ना EVs का आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, so everybody is trying to make vehicles. So Tesla ने जो है ना वो ज़बरदस्त बना ली. Now they are making the most money. Chinese companies आ गई हैं, Toyota पीछे रह गया है, ठीक है. हाँ कि Toyota लीडर था ऑटोमोबाइल में, तो आहिस्ता आहिस्ता Toyota is losing the. Anyways, the thing is, there are a lot of people that try to solve the problem in many different ways. Like for example, in the automobile revolution, there were 2,000 plus startups in Detroit. अब उनमें से कितनी कंपनियां रह गई? बहुत थोड़ी. Chevy है, GMC है, Ford है, इस तरह की थोड़ी सी कंपनियां. लेकिन there were 2,000 startups. जिस तरह भी हमारी स्टार्टअप है ना, आप भी एक स्टार्टअप हो, ठीक है. तो उस ज़माने में इतनी ज़्यादा स्टार्टअप्स थी, and there was a lot of money available. So what we call financial capital, ठीक है. ये वेंचर कैपिटल हैं, वो पैसे दे रहे हैं. किसी को बड़े पैसे बनेंगे, चलो इनको दो. जिस तरह पाकिस्तान में भी पहले तो सारे लोग ना रियल एस्टेट में पैसे डाल रहे थे, सारे सेठ. अब कहते हैं यार ये Emumba शायद बड़ा पैसे बनाएगी, तो Emumba में डाल दो पैसे, या किसी और में डाल दो. In any case, not everybody's formula is successful. So that's what she calls, this phase, creative destruction. There's a lot of creative ideas, but not everything works. Okay? But some of them, they figure out the formula. They become massively successful. Okay? Like Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. So they call it FANG. The problem is, because there are a lot of people doing all kinds of crazy stuff, it creates it creates hype. So अगर .com bubble burst का पता है? Some of you don't, right? I was in Silicon Valley. I joined a startup which got the highest funding at that time, Brian's, $300 million in 2000. ठीक है? And we burned $130 million of it as well. They did the first step to go public. क्योंकि होता ये था कि करो public जाओ, पैसे बनाओ गायब. अब वो कंपनियां public जा रही हैं, लेकिन समझ नहीं आती करती क्या है वो, यानी उनकी वैल्यू क्या है. वाकई तो हाइप थी बहुत ज़्यादा, ठीक है. लारा यानी lack of a better term, I'm American so I can use this term, bullshit going on, ठीक है. अब रिकॉर्ड हो. तो वो and we saw that, amazing, अजीबो गरीब चीज़ें हो रही हैं. खैर जब वो हाइप क्रिएट होते हैं तो इवेंचुअली हाइप बबल बर्स्ट, लोगों को पता लगता है यार ये तो बड़ा फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे. तो सारे जो पैसे डालने वाले VC थे ना, वो सारे भाग गए. लेकिन there were some companies, they were doing genuine work and they became massively successful. ये कंपनियां यार $1 trillion की कंपनी हो गई उनकी. ये एप्पल हो गया, I think Amazon also. So these are huge companies. And ये जो टाइम पीरियड ना, this is around 20 to 30 years, ठीक है. This time period is around 10 to 20 years, and this is again 20 to 30 years duration, roughly speaking. जब वो hype bubble burst होता है तो it's always followed by a crisis, and crisis in economic term means recession. Recession का मतलब होता है, technical term है, जब 2 क्वार्टर गुजर जाएं साल के जिसमें नेगेटिव ग्रोथ हो, तो ये is technically called recession. तो वो बड़ा बुरा रिसेशन में क्या है, कंपनियां बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. हमारी भी कंपनी बंद हो गई, ठीक है. आखिर में हम गए, कहा यार ये 350 बंदा था, वो 7-8 ले ऑफ्स के बाद 30-35 रह गए. जब हम गए इसी तरह कमरे में बुलाया, यार ये लो तुम्हारा पैकेज है, घरों को जाओ, अब हम और नहीं काम कर सकते. तो शुक्र है मेरा उस दिन एक और इंटरव्यू था. ठीक है, ये 2003 की बात है. वो ट्रीगो हमने ज्वाइन कर ली. एनीवेज, the point is, the crisis translates into recession. But these successful companies, they are very successful, and they are developing frameworks, methodologies, tools, Kubernetes, DevOps, cloud. Okay, so they will disrupt us. So either we become successful or we will be disrupted. Okay, it's a do or die वाली situation हो गई. ये यानी companies are putting their own. It's like OS decide करे यार आपके जो
करता धरते हैं, आप कहें यार हमने डेवऑप्स पे काम करना है, ठीक है, तो उस पर खर्चा लगेगा भाई, बंदा लगेंगे, कॉस्ट होगी, ठीक है, तो ये कॉस्ट कहाँ से आएगी? या तो मैं आपको चंदा दे रहा हूँ, आप कहें यार कर लें, नहीं आप कहेंगे मैंने अपने पैसे लगाने हैं। इट्स अ सीरियस डिसीजन, आप क्योंकि बिजनेस ऑलवेज इज टॉकिंग अबाउट ROI, यानी यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट. So they are thinking that we can generate a lot of wealth just like these guys if we follow their footsteps. And the footsteps are known, well known. ज़रूरी नहीं है कि वो आसान हो उसको फॉलो करना. See, देखा जो पिछला रेवोल्यूशन था ना, actually I did not go into this detail, but maybe I'll take you through that in a bit. So this is where a new paradigm is being defined, a new way of doing things. This is where it gets matured, and now we are deploying it to everywhere. And this is called wealth generation. So Carlota Perez ने ये book लिखी थी 2002 में, जब हम सही बुरे रिसेशन में थे, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो बात करती है, कर रही है गोल्डन एज की. देयर इज अ गोल्डन एज कमिंग, वो इस टाइम की बात कर रही है. अब आप सब IT के ग्रेजुएट्स हो, ठीक है, कुछ लेकिन IT में काम कर रहे हो ना, पूछो वो बेचारे जो तुम्हारे सिविल इंजीनियर के ग्रेजुएट्स हैं, वो ख्वार हो रहे होंगे. हाँ, सिविल इंजीनियर बेचारे, तो ठीक है ना. तो मेरा अपना एक साला है, वो भी सिविल इंजीनियर है, दूसरा साले को शुक्र है IT में भेज दिया था, तो वो मज़े कर रहा है, उसने PhD कर ली, वो डायरेक्टर लगा, वो दूसरा सिविल इंजीनियर ख्वार हो रहा है, कहीं बल्तिस्तान में उसकी ड्यूटी लगी है, सड़कें बनाओ, ये करो. तो यानी बिकॉज यू सेलेक्टेड द राइट फील्ड. अच्छा, वो जो सिविल इंजीनियर है वो कहता है मैंने ना ये बैठ वाली जॉब नहीं करनी, मैंने भाग दौड़ वाली जॉब करनी. अब उसको लग रहा है रगड़. ठीक है, तो you are actually born not here. See, I was here and I started somewhere over here 1997 when I graduated. 2000 में तो रिसेशन आ गया, लेकिन शुक्र है हमारी जॉब शॉप थी हमारे पास, ठीक है. लेकिन यहाँ तो मज़े, जो बंदा यहाँ पैदा हुआ है वो उसको सिर्फ कंप्यूटर का थोड़ा सा आ गया तो उसको ना रख लेंगे, थोड़ा सा शार्प हुआ बंदा तो उसको रख लेंगे, ठीक है. अब क्या है, यहाँ पे आपके कुछ इंजीनियर्स हैं, देवर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो काबिल तगड़े बंदे थे, उनको सिखाया गया, वो कर रहे हैं काम. So they changed. A lot of our class fellows who are double E engineers, all of them are in IT. ठीक है. So anyways, because you are in this age, you have to do age appropriate things. You know, we're talking about not your physical age, you're talking about the times you are living in. ठीक है. So that's very critical. Let's go to the next. So a new paradigm is being defined, and the new paradigm is being widespread. So now लोग कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है. आपको you are born with mobile phones in your hand. My kids are on the mobile phone all of the time. We didn't have mobile phones. You know, we had a lot of time at our hands, so we had to do something else. The thing is, they are born in a new paradigm. So my 18-year-old, 19-year-old kid, मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है, वो UC बर्कले में लायक है बड़ा, एक है इंट्रोवर्ट, ठीक है, वो गपशप नहीं लगाता, वो गले मिलेगा ना तो ऐसे जैसे कोई रिटार्ड होता. तो बट ही इज़ अ शार्प किड, वो UC बर्कले पहुंच गया, मेरे से तो ज़्यादा लायक है वो. बट ही हैज़ अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सनैलिटी इन द चैट, बिकॉज ही लिव्स इन द चैट वर्ल्ड. मुझे एक और बंदे, मैंने कहा ये मेटा की बलासी, कहता है ये मेटा सारा ये वर्चुअल वो है. उसने कहा वो एक कॉन्सर्ट हुआ तो वो कौन सा वो ब्लैक एक सिंगर है उसने किया, आर्टिस्ट, तो उसने कहा आप एक्चुअल किसी जगह पे जाएंगे, इवेंट को बिल बोर्ड लगा हुआ है तो आप उसको देखेंगे, आगे चले जाएंगे. उस वर्चुअल वर्ल्ड में यू कैन गो इनटू इट, ठीक है. कोई किसी का बिल बोर्ड लगा हुआ है, यू कैन टच इट एंड गो टू देयर शॉप एंड दे विल हैव सम मेटा प्रेजेंस और समथिंग लाइक दैट. लेकिन जो मज़े की बात है, उसने कहा ये जो आप तो बुढ़े बाबे हैं, ये जो आपके बच्चे हैं जो कि तो कौन सी वो गेम्स हैं, रोब्लॉक्स की वर्चुअल वर्ल्ड में फिर रहे हैं, या माइनक्राफ्ट में फिर रहे हैं, या वो और जो ये सारी हैं एक्सबॉक्स की, दे आर यूज्ड टू दैट वर्चुअल वर्ल्ड. इट विल बी वेरी नेचुरल फॉर देम टू प्ले इन मेटा. यानी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ न्यू पैराडाइम, ठीक है. सो दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट. लेट्स मूव ऑन. So few more examples of new paradigm versus old paradigm. So let's talk about, let's say, project management. So go here because I didn't spend time there. ये जो industrial revolution है ना, this is basically about मोटी मोटी मशीनें, बड़ी बड़ी गरारियाँ जो पंचक्की पे चल रही हैं, उसको बिजली भी नहीं बनी थी, ठीक है.
वी आर टॉकिंग अबाउट बिग स्केल मशीनरी। फिर अब हर जगह पे, अब पहले यूके से स्टार्ट हुई, अब हर जगह मौजूद है। अगला जो रेवोल्यूशन था ना वो था स्टीम इंजन और रेलवे लाइंस का। स्टीम इंजन बड़ी आसान सी चीज़ है, कोयला डालो, स्टीम निकलेगा, वो पिस्टन घूमेगा, टायर घूमेगा, चलना। आपने रेलवे लाइन डालनी है, ठीक है। बट इट वाज रेवोल्यूशनरी इन नेचर बिकॉज इट enabled मैस ट्रांजिट ओवर लैंड। आप जो है ना सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जा सकते हैं, कोई चीज़ न्यूयॉर्क में बन रही है वापस सैन फ्रांसिस्को में आ सकती है, ठीक है, क्योंकि एक ही कॉन्टिनेंट है। नो, इसी तरह जब वो गोरे यहाँ पे आए थे उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइनें डाली, अभी तक हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो दैट वाज रेवोल्यूशन, दैट्स हाउ दे वर एबल टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। उससे पहले ट्रैवल करना वाज वेरी हार्ड, टफ थिंग टू डू। रास्ते में आपको डाका बढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये दिस वाज अ रेलवे लाइंस एक्चुअली रियली रेवोल्यूशनराइज्ड लॉट ऑफ थिंग्स। उसका अगला रेवोल्यूशन क्या था, एज ऑफ स्टील। स्टील इज़ एन एलॉय, केमिकल इंजीनियरिंग का वो है ना। तो स्टील इनेबल्ड आरसीसी कंस्ट्रक्शन। अभी आप छत पे, ये नीचे एक फ्लोर की छत पे खड़े हुए हैं, इतना बड़ा स्पैन है भाई, इतना बड़ा लोड उठा रही है, कंक्रीट नहीं उठा सकती। हाँ, उसमें सरिया लगा हुआ होगा ना, जाल, वो उठा लेगी। दैट्स कॉल्ड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। जब ये आ गई, नाउ यू कैन बिल्ड डैम्स, ब्रिजेस, लार्ज ब्रिजेस, ठीक है, कई कई किलोमीटर लंबे ब्रिजेस। यू कैन नाउ बिल्ड हाई राइजेस, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स। पहले तो आप इतने नहीं कर सकते थे। उसके अलावा स्टील एनेबल कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज शिप्स, ठीक है, लार्ज शिप्स नाउ यू कैन डू। उससे पहले लकड़ी की कश्तियाँ होती थी, ठीक है। अब लार्ज शिप्स एनेबल मैस ट्रांजिट across ocean. So now the whole world is connected. Something which is manufactured in Japan, you can buy it in San Francisco, and vice versa. ठीक है. So these were big revolutions. इनके अपने cycles हैं. What was the foundational innovation? जिस तरह हमारे लिए माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन फिर हमें टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए, वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज़ का चाहिए। यहाँ पे आपको साथ में ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल्स में, जिसमें मैस प्रोडक्शन बनना शुरू हुई, असेंबली लाइन, ठीक है। यानी इससे पहले क्या होता, हमारी वालदा की शादी हुई, हम छोटे बच्चे होते थे तो हम देखते कि यार ये घर में एक ना बड़ा खूबसूरत सा एक सेट है कटलरी का, उसको खोलो ऐसे, वो जो संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो चीज़ें नायाब होती थी, इतने आराम से नहीं मिलती थी। अब तो ये आईफोन है, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पी, ये कटलरी से बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, महंगा भी है। वी हैव मेड बिलियंस ऑफ दिस, ठीक है। ये मैं खरीदूंगा, 2-3 साल मांगूंगा, बेटे को दूंगा, वो आगे से मुझे कहेगा चलो भैया मुझे नया चाहिए, ठीक है। तो अब वो चीज़ें जो है ना इतनी कॉमन हो गई हैं कि वी डोंट टेक केयर ऑफ थिंग्स द सेम वे। पहले टीवी, जो CRT मोटे मोटे बड़े बड़े टीवी होते हैं ना, वो चादर में रखे होते थे ताकि उसमें धूल ना पड़े, ठीक है। तो नाउ वी हैव, यानी हम वो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल से हम कंज्यूमर लाइफस्टाइल पे चले गए, ठीक है। दैट्स अ चेंज इन सोसाइटी, दैट इनोवेशन, दैट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन of mass production has changed the way we live, the way we communicate, the way we do things. Okay? So this is what I wanted to tell you. These revolutions have a huge impact, not only technical but also economic, social. Okay? So let's go to now some few more examples of new paradigm versus old paradigm. So project management, जो मैंने आपको कहा था कि project management became a science when we started doing mega projects. Dams बन रहे हैं, bridges बन रहे हैं, बड़े बड़े ना। तो उससे पहले रेलवे लाइन डल रही है, कोई मसला नहीं जी, 30 मजदूर हैं, डंडा उठाओ, उनसे रेलवे लाइन डला। लेकिन अब आपने मजदूरों, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, वो बड़े सारे लोग काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, आपने प्लानिंग करनी है बकायदा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिकेम अ साइंस एट दैट टाइम। जो गैंट चार्ट था ना, वो जो आपने सुना होगा, गैंट वॉज अ गाय, ही इन्वेंटेड गैंट चार्ट्स, ठीक है। तो अब जब IT शुरू हुई, ठीक है, हमारे साइड पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड पे, तो वी आल्सो नीडेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट, क्योंकि हमारी भी बड़ी सारी टीम है। देखो ना, प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, आर्किटेक्ट, डेवलपर, टेस्टर। फिर अगर प्रोडक्शन में जाना है तो नेटवर्क इंजीनियर, स्टोरेज इंजीनियर, इंफ्रास्ट्रक्चर का बंदा, VMware का बंदा, ते ऐप, ते DBA, ते मॉनिटरिंग का बंदा, साइबर सिक्योरिटी, इतने सारे बहुत सारे लोग हैं। फिर वो HR भी बैठी हुई है, वो हायरिंग कर रही है आपके प्रोजेक्ट के लिए, प्रोक्योरमेंट भी हो रही है आपके प्रोजेक्ट के लिए, बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या तरीका है? वो तो 130 साल पुरानी फील्ड है, कोई मसला नहीं है, वाटरफॉल है, वाटरफॉल करें। हमने वाटरफॉल करना शुरू कर दिया।
मैं खुद वाटरफॉल पे काम कर रहा था, ठीक है। पहली जो 1-2 जॉब्स थी हमारी, कुछ साल, बल्कि महल है 7-8 साल तो किया होगा मरहल है। तो तो इशू ये है कि हमें बड़े प्रॉब्लम आने शुरू हो गए। हमने कहा यार ये, और प्रॉब्लम्स क्या थे, वी वुड, पहला प्रॉब्लम ये था कि आर रिलीजेस वुड बी, व्हेन आई वाज इन IBM, जो IBM का DB2 है ना, रिलेशनल डेटाबेस ऑरेकल की तरह, यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स, उसकी रिलीजेस 1.5 से 2 साल लंबी होती थी। आई रिमेंबर द डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ DB2, हिज नेम वाज बाला आयर। मैं उसके ऑफिस में गया, सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी थिक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स है, वो उनको रिव्यू कर रहे हैं। भाई कुछ भी मसला हो गया तो इसके ऊपर सर पे आगे पड़े, तो क्या डिज़ाइन बनाया था। 2 साल लंबी रिलीज। मुझे याद है जब हम रिलीज के शुरू में हम कहते थे कि यार ये वाटरफॉल है, फुल रिक्वायरमेंट्स, इट विल फॉल इनटू फुल डिज़ाइन, इट विल फॉल इनटू फुल कोडिंग एंड डेवलपमेंट, फिर फुल टेस्टिंग, उसके बाद गो लाइव, ठीक है। अब हम इधर बैठे हुए शुरू में, हम कह रहे हैं वो जो आखिर में हम टेस्टिंग करेंगे ना, तो उसमें कैसे डिफेक्ट्स डिस्कवर होंगे। वी यूज्ड टू डू डिफेक्ट डिस्कवरी प्रोजेक्शंस, ऐसे वो मैजिक बॉल lot of bullshit I would say. Heuristics थी उसमें, it wasn't complete but it was lot of guesstimation. हाँ, उनकी severity level क्या होगा, और फिर defect discovery rate क्या होगा, और defect take down rate क्या होगा, और फिर हम जो है ना eventually 6 हफ्ते में हम उसको 0 तक ले जाएंगे और फिर हम go live हो जाएंगे। कभी भी ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो the problem is, so this was problem number 1. Problem number 2 was the customer, हर वक्त चेंज मत कहते यार ये चीज़ कर दो, वो चीज़ कर दो। तो आप कस्टमर से कहते यार हमारा फिक्स प्लान है, बन चुका है, हम डिज़ाइन, हम कोडिंग में बैठे हैं, अब हम वापस नहीं जा सकते एक रिक्वायरमेंट डाल, बड़ी तकलीफ होगी। तो वाकई इतनी तकलीफ होती है कि हम कस्टमर से छुपते थे, गोली फिट करा दो, ठीक है। तो दैट्स रॉन्ग, कस्टमर इज किंग, यू गोटा लिसन टू कस्टमर। तीसरा प्रॉब्लम कि वो जो शुरू की जितनी भी फेजेस है ना, वो आके सारा रिस्क थोप देती थी आखिरी में, आखिर में सारे इशू पकड़े जाते थे। तो वो रिस्क क्यों है, क्योंकि नाउ राइट आफ्टर दैट इज गो लाइव, यू कैन ईजिली मिस द डेडलाइन। बड़ा स्ट्रेसफुल होता था वो टाइम, हम गुजर चुके हैं उससे, हमारी बहुत तकलीफ होती थी। कंपेयर 2 week लॉन्ग स्प्रेड और 3 or 4 week लॉन्ग इटरेशन वर्सेज 2 year लॉन्ग थिंग, वो अब मिस कर रहे हैं तो सही जूते पड़ते थे। फिर एक बहुत बड़ा इशू था जो सीरियस इशू, इन्होंने दे डिड अ स्टडी वेयर दे, ह्यूज स्टडी, दे फिगर्ड आउट कि 60 to 70% ऑफ द फीचर्स डेवलप्ड इन सॉफ्टवेयर आर नॉट यूज्ड एट ऑल, और दे आर यूज्ड वेरी लिटिल। व्हाई स्पेंड द मनी ऑन इट, बिकॉज सॉफ्टवेयर इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो उन्होंने कहा यार ये वाटरफॉल तो काम नहीं कर रहा, हम करते हैं इनोवेशन। तो IT इंडस्ट्री ने इनोवेशन की, एजाइल मैनिफेस्टो बना। कब बना था यार किसी को? 2001 में बना था, शायद 2000 में बना, मुझे सही याद नहीं है, या 2000 में था या 2001 में। उन्होंने कहा कि यार हम जो है ना एक चीज़ बनाएंगे, मैनिफेस्टो तो अपनी जगह पे, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल हो गया था। उन्होंने कहा कि हम एक नया चीज़ बनाएंगे, कहेंगे हम बैकलॉग। बैकलॉग जो है ना, दैट्स अ लिस्ट ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर आपकी ये रिक्वायरमेंट, ये नहीं बैकलॉग में डाल दें। कस्टमर को खुशी होती है ना, आपको बेगम आपको कहे कि यार मेरे लिए ये चीज़, हाँ जी ये मैंने नोट कर लिया, आपने तो बड़ी खुश होगी। अगर अच्छा नहीं, मैं आपने सुना ही नहीं, इसने नोट कर लें तो वो बड़ा, ये देखो मेरी पूरी लिस्ट है, ये देखो। और हमने कहा कि ये एक्टिव बैकलॉग है, ठीक है, इट्स नॉट पैसिव। एक्टिव का मतलब है कि इट्स प्रायोरिटाइज्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये टॉप ऑफ द लिस्ट चला गया, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बीच में चला गया, नीचे चला गया, ठीक है। तो ये एक्टिव बैकलॉग है, यू आर प्रायोरिटाइजिंग। अच्छा ठीक है, ये बड़ा अच्छा होगा, जब भी कस्टमर आते हैं तो सर ये आपको भी एक्सेस दे देते हैं, आप खुद ही इसमें डाल दिया करें। फिर उन्होंने कहा कि यार दे इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड टाइम बॉक्स रिलीजेस, कि हम ये 2 साल के चक्कर, 9 महीने 12 महीने के चक्कर नहीं लगाएंगे। मेरी अपनी रिलीज 9 to 12 months की होती थी, हम DB2 से काफ़ी छोटे थे, बस वेरी लॉन्ग। तो उन्होंने कहा कि हम टाइम बॉक्स करेंगे, ये जी हम ना हर महीने रिलीज़ करेंगे, ये टीम है मेरी, ठीक है, इनको हम कहेंगे 1 महीने में आप कितना काम कर सकते हैं, वो उतना उठाएं टॉप ऑफ द बैकलॉग से, हाई प्रायोरिटी स्टफ। ये नहीं है कि सारे नहीं, हाई प्रायोरिटी उठाएं और उसको डिलीवर करें। हाँ, उसके लिए एक चीज़ चाहिए, जो चीज़ हम डिलीवर करेंगे ना वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वाटरफॉल में क्या होता था कि 2 साल के बाद कस्टमर को वैल्यू मिलती थी, इसमें आप महीने के बाद उसको वैल्यू दे रहे हैं।
वैल्यू एक टर्म यूज होती है ना इंग्लिश में, उसको फीचर्स मिल रहे हैं प्रोडक्ट, वैल्यू का मतलब ये है, ठीक है। तो नाउ यू कैन डिलीवर वैल्यू इटरेटिवली, ऑसम, ठीक है। सो टाइम बॉक्स रिलीज वर्क दैट वे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब मैं उसमें ये थोड़ी एबिलिटी है कि मैं आपको कहूँ मुझे गाड़ी दें आप, तो आप कहें यार मैं गाड़ी तो 2 साल में बनाऊंगा, लेकिन आपको हर महीने ना पहले महीने में आपको टायर दे दूंगा, फिर इट्स नॉट मीनिंगफुल, ठीक है। लेकिन हाँ ये कहूँ कि आपको मोबिलिटी सोल्यूशन, जब मैं आपको साइकिल दे दूंगा, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल दे दूंगा, फिर उसके बाद स्कूटर दे दूंगा, जो भी है, तो वो आखिर में गाड़ी मिल जाएगी। ये एक रफ बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये कि इट हैज़ टू बी मीनिंगफुल, ठीक है। तो alhamdulillah, I think a lot of people have figured that part out. They are able to deliver in a meaningful way, because the software systems are complicated. Once you have enough foundational work done, then you can do incremental meaningful releases after that. So then they implemented something amazing. They said we will collect customer feedback. पहले तो हम customer से छुपते थे, अब हम customer के पास दौड़ते हुए जाएंगे, उसको कहेंगे भाई हमें feedback दो, हमें जो features दिए उसमें कोई तुम्हें enhancement चाहिए, कोई मसला नहीं, चाहिए ये लो जी बैकलॉग में डाल दो, ठीक है। So we came up with it. So this is what agile methodology. So instead of having fixed plans, there is a new paradigm, agile flexible strategies, ठीक है। Instead of doing mass production, now you can do flexible production. What does that mean? Nike जूते बनाते हैं, they allow you to customize the shoes. अब आप सोचो कि आप नाइकी हो और आपकी असेंबली लाइन से जूते बन के निकल रहे हैं, ठीक है। तो आपने उस असेंबली लाइन में बीच में कस्टमाइजेशन करनी है, खौरी नहीं हो जाएगी। BMW has a new assembly line where they produce not one type of vehicle, I think 3 or 4 different types of vehicles. They produce them as they are ordered in the same sequence with the customization the customer has ordered. अब वो बंदे काम कर रहे हैं, असेंबली लाइन है वो, how would you do that? That's sophistication. उनको वो रेगुलर असेंबली लाइन से ज़रा इस कस्टम असेंबली लाइन की तरफ जाना है. They have to enhance their process. ठीक है. तो this is what it means, right? Before you would look at human resources as head count. ठीक है. क्या नाम है आपका? सादिक. अच्छा. सादिक एंड अमीन. अच्छा. आपका क्या नाम है? सादैन. अच्छा, माशाल्लाह. सलमान और सादैन. ठीक है. So you can look at as two people. You know, if they're not doing a good job, you can fire them and hire 2 more people, maybe Peter and John. But the thing is, Peter or John जो है ना वो सादैन और हाँ they are not the same, and there is a reason for it, because there is a new paradigm. अब मैं इस तरह कहता हूँ कि आपने घर बनाना है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, आपने नक्शा बना लिया, अब एक ठेकेदार को दें, वो उसी तरह ईंटों का घर बनाएगा जिस तरह दूसरा ठेकेदार बनाएगा, 19-20 का फ़र्क होएगा, क्वालिटी का फ़र्क होएगा कुछ. आप चले जाएं अमेरिका में, वो घर लकड़ी का बनेगा, लेकिन जो भी आ जाए उसने उसी तरह ही बनाना है, 19-20 का फ़र्क होएगा. देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ रूम फॉर क्रिएटिविटी. लेकिन मैं आपको कहूँ कि आपने ये जो है ना सॉफ्टवेयर लिखना है, आपको दे दूँ इस टीम को, दूसरी टीम को दे दूँ, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होएगा, 100%. देयर इज़ अ ह्यूज रूम फॉर क्रिएटिविटी. ठीक है. And when there is creative work involved, not everybody is as creative as the other guy. ठीक है. वो क्या, एक मोजार्ट था, एक वैन गो गुजरा है, अब वो मोजार्ट ने जो म्यूज़िक बना दिया उसने, वो बना दिया. अब मैं 100 बंदा भी ले आऊँ ना तो शायद उस तरह they don't have the capability. कभी ये भी होता है कि एक जीनियस है, वो कर गया, इतना क्रिएटिव था वो बंदा. तो गूगल में उन्होंने स्टडीज़ की, दे फिगर्ड आउट कि यार एक बंदा जो है वो 2, 5, 10, 20 बंदों के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी कैन ट्रांसलेट इनटू प्रोडक्टिविटी एज वेल. तो अगर सादैन जो है वो चैम्पियन है जो कि लग से 4 बंदों का काम कर जाता है, तो आप कहेंगे यार इस बंदे को तो मैं रखूँ. ठीक है. तो द थिंग इज यू कंपनीज हैव टू नाउ नॉट लुक एट हेड काउंट, यार 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, नहीं, यू हैव टू लुक एट टैलेंट. ठीक है. सो द एबिलिटी ऑफ कंपनीज टू एक्वायर टैलेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो आप देखें कि यार मैं कहूँ कि यार यूसी बर्कले टॉप 5 में आता है कंप्यूटर साइंस में, MIT, स्टैनफोर्ड, CMU, यूसी बर्कले, UIUC. ठीक है. और उनके ग्रेजुएट्स कहाँ जाते हैं, उनसे सर्वे करें, कहाँ जाएंगे. अगर वो कहते हैं मैं टेस्ला ज्वाइन करूँगा, मैं SpaceX ज्वाइन करूँगा, या मैं Amazon, वो यानी 5 से 10 नाम लेंगे वो ना. तो दैट मीन्स दे हैव, उनका एक ब्रांड बना हुआ है, उनका एक, लोगों को पता है कि यार ये अच्छी जगह है, हम इधर जाएंगे.
तो does Microsoft is able to acquire good talent as well? IBM, मैं खुद IBM 10 साल काम किया, मैं अब दोबारा नहीं जाऊँगा. अब Red Hat आ गया, हाँ शायद वो चला जाए, ठीक है. तो the point is कि the company's ability to acquire talent and retain talent, ठीक है, is very very important. ये तो यार मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, अब ये समझेंगे सारे VIP हैं. So anyways, the whole point is there is always now a new paradigm and you have to stay relevant to know the paradigm. अगर आप waterfall में काम कर रहे हैं, sorry. By the way, मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में ये वर्कशॉप कर रहा था. Normally this is a very long workshop. तो मैंने पूछा कितने ये बंदे IT के कितने, 2 बंदे खड़े, बाकी सारे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर थे. मैंने उनसे पूछा तुम्हें पता है एजाइल क्या होती है? किसी को नहीं पता था, ठीक है. वो अभी भी सारा वाटरफॉल में काम कर रहे हैं, ठीक है. तो क्यों हमें वी आर अ लॉट मोर वी आर इन दिस एज ऑफ डिजिटल, सो वी आर डूइंग नॉट कटिंग एज स्टफ, ठीक है. एंड मोर थिंग्स विल कम. डेवऑप्स नहीं था, ठीक है. डेवऑप्स इज अ वेरी न्यू थिंग, ठीक है, relatively, right? 10 maybe 13-14 year old. यानी DevOps was used as a hashtag in 2009 by a guy called Andrew Schaefer, ठीक है. एंड्रयू शेफर हमारा हम उम्र ही होएगा मेरा ख्याल है. उसकी मैंने लाइव प्रेजेंटेशन देखी थी लॉस वेगस में, मे बी 5 years ago, 2018 में, आई थिंक, बिफोर कोरोना. वेरी इंटरेस्टिंग है. ही इज नाउ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन रेड हैट. So he used that hashtag DevOps in 2009. He organizes the DevOps Days conferences, and he's from the operational side of things, not the dev. But a very interesting guy. Anyways, that's a new thing. Learn about it. Okay? So we will introduce you to some few concepts, inshallah. I think this is a very important slide. So अब आप जो हो ना, यानी you are in digital age, you have to compete in this digital age, ठीक है. कंपटीशन है भाई. 10,000 यूनिवर्सिटी. जब हम ग्रेजुएट हुए तो पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटियाँ थी? मतलब 10 से कम होंगी, और जो IT पढ़ाती हैं वो तो बहुत ही कम होंगी. कंपटीशन ही कोई नहीं है, ठीक है. अब आप तो पत्थर उठाएं तो 10 यूनिवर्सिटियाँ मिलती हैं, ठीक है ना. तो नाउ लॉट ऑफ हेड काउंट, बट वेयर इज द टैलेंट, वेयर आर द क्रिएटिव पीपल. सो यू नीड टू बिकम दैट क्रिएटिव पर्सन, and you need to develop all of these skills to become, वो होता है ना क्रिकेट में all-rounder. You need to become an all-rounded, well-rounded professional, ठीक है. जब हम यानी आप हायरिंग करें ना ग्रेजुएट्स की, फ्रेश ग्रेजुएट को वैसे ही कुछ नहीं आता, सादा सा मोटी मोटी चीज़ें आती हैं, उसको सिखाना पड़ता है. लेकिन हम किसको हायर करते हैं? नॉर्मली जिसके ना सॉफ्ट स्किल्स अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, जो है ना प्यार से लफ्ज़ यूज़ करें, ऐसे वो बुद्धू सा नहीं लगता वो, ठीक है. वो समझदार लगता है यार. हाँ, द गाय इज शार्प, ही इज अ क्विक लर्नर, ठीक है. तो वी हायर दैट गाय. वी डोंट हायर कि यार GPA बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल ख़राब GPA ना, तो अलग बात है. नॉर्मली आवर गोल इज टू हायर द फास्ट लर्नर विद गुड स्किल, विद गुड एटीट्यूड, ठीक है. तो नॉर्मली फ्रेश ग्रेजुएट्स हैव लॉट ऑफ एनर्जी, राइट. जवानी है तो एनर्जी तो होगी, तो एटीट्यूड भी अच्छा उसका, हार्ड वर्किंग भी हो और फास्ट लर्नर हो. ये हाँ कॉम्बिनेशन हम ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है. तो द पॉइंट इज यू हैव टू डेवलप दो स्किल्स टू डू द डिफरेंशिएशन. अगर इसको अभी डॉक्टर कार्लोटा पेरेस का काम बहुत यानी ज़बरदस्त है चीज़ें समझने के लिए. अब उसने कहा कि यार आपने सक्सेसफुल होना है इस रेवोल्यूशन में, क्या स्किल्स चाहिए आपको? तो कहती है देख लो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो मालिकान हैं उनको जनरल नॉलेज होना चाहिए. रेलवे में मालिकान और जो शायद लॉयर्स आपको चाहिए, क्योंकि आपने ना लैंड को एक्वायर करना है लाइन, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, ठीक है. तो आपको शायद जनरल नॉलेज प्लस लॉयर वगैरह टाइप चीज़ चाहिए. जी आपको एज ऑफ स्टील में इधर आप ना मेगा प्रोजेक्ट करें, तो अब आपको ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी चाहिए, इंजीनियरिंग स्किल्स भी चाहिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टाइप, ठीक है. यहाँ पे आपको ना मैस प्रोडक्शन करनी है, तो आपने असेंबली लाइन लगानी है, तो बहुत सारे पार्ट्स चाहिए आपको. तो सप्लायर्स के साथ आपने बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, एक्विजिशन करनी है, फिर आप चीज़ें बना रहे हैं बहुत सारी, आगे बेचनी है रिटेलर से. तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए. जो मैं कहता हूँ जब हम छोटे थे, यानी जब ये वाला रेवोल्यूशन चल रहा था, तो MBAs बड़े हॉट थे. वो इसलिए कि वो ये वजह थी, उनको चाहिए MBAs उस ज़माने में. तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम अ साइंस. ये नहीं था कि MBA की डिग्री
क्या कोई पैगम्बर अलैहिस्सलाम पढ़ा के जाते थे, नहीं, ये तो अभी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ये निकाली है ना, ठीक है। और अब क्या चाहिए, अब देखो ज़्यादा लोगों को चीज़ें चाहिए, यहाँ पे क्या है, इधर किसी को भी मैं उठा लूँ, यू हैव बैचलर्स डिग्रीज, मास्टर्स डिग्री, हाईली क्वालिफाइड, एक बंदा हाईली क्वालिफाइड है। बिल्डिंग साइड पे जाओगे तो मजदूर भी मिलेंगे, ठीक है, या इधर जाओगे तो कोई टेक्नीशियन टाइप मिलेंगे, यहाँ पे तो आप सारे इंजीनियर्स बैठे हो, ज़बरदस्त। तो मोर एंड मोर पीपल नीड टू हैव हायर एंड हायर स्किल्स। लेकिन डॉक्टर कार्लोटा पेरेस कहती है नॉट ओनली टेक्निकल स्किल्स, यू नीड बिहेवियर स्किल्स। तो जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, एंड शी यूज दिस टर्म सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर। सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर का बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत जबरदस्त टर्म है, बताइए। इसकी एग्जाम्पल देता हूं, ये देखो, आपको मैं रेज्यूमे दिखाता हूँ, ये मेरा जो बेटा है उसको गैर मौजूद है, हम उसकी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा ना कि वो ये उसका रेज्यूमे है हमजा का, माशाल्लाह तबारकल्लाह, हाँ, ये हमजा का रेज्यूमे जब वो ए लेवल्स में था। आप लोग तो सारे आईटी के हो ना, इसको पढ़ो आप, देखो, ठीक है। उसने ये क्यूबरनेटिस की सर्टिफिकेशन की हुई है, रेड हैट की हुई है, दीज आर प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेट, वो द गाय इज इन ए लेवल्स। मैंने उसको नहीं कही, उसे खुद ही की है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर। ही डायरेक्टेड हिमसेल्फ टू लर्न द स्किल्स। थोड़ा सा गाइड किया होगा उसको, लेकिन ही डिड इट ऑल बाय हिमसेल्फ। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मुझे तो खुद पाइथन ये चीज़ें नहीं आती, मैं तो बाबा हो गया, ठीक है। तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स टेकिंग चार्ज। यानी हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो ये किताबें और ये प्रोफेसर है, लाइब्रेरी भी नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल से मिली थी, इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब, यूडेमी, ये चीज़ें नहीं थी। अब तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं, उसे यूडेमी में, उसे मैं पाइथन सीखनी है, अच्छा जाओ देखो यूडेमी पे सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है, $10-15 का, ये लो जाओ कर लो, दूसरा करना जाओ ये भी कर लो। वो तो किस्मत अच्छी थी, पाइथन AI वगैरह में जो थी, उसने आगे जाके ना ये 3-4 पाइथन AI के कोर्सेज कर दिए, ठीक है। अब उसको हेल्प कर रही हैं चीज़ें, दाखिले में उसकी आसानी हो गई, उसने इंटर्नशिप भी कर ली। तो बात कहने का मकसद ये है कि ही इज़ नाउ सेल्फ डायरेक्टिंग हिमसेल्फ। उसकी मोटिवेशन थी एक्चुअली हमजा की, ही डिडंट वांट टू कम टू पाकिस्तान, ही वांटेड टू गेट एडमिशन इन US। मैंने कहा काका तुमने US जाना है, गेट एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज़, आई विल पे फॉर इट, नो इशू। मेरा कि मीडियोकर सी यूनिवर्सिटी है, तुमसे अच्छा पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटी में चले गए, नहीं उसे पाकिस्तान नहीं जाना था। तो वो जो है ना, उसने मेहनत की। मैंने कहा दाखिले के लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दिखानी होती हैं। तुम सऊदी अरब में क्या, मैं सऊदी में होता हूँ, क्या एक्टिविटीज़ दिखाओगे? यहाँ पर सऊदी शायद थोड़ा बहुत कर लें, तो गर्मी बढ़ते कुछ कर ही नहीं सकते हो, लेकिन तुम ये कर सकते हो IT, देयर इज़ नो बैरियर, ऑनलाइन जाओ करो। वो करना शुरू कर दिया उसने, गिटहब पे अपना पेज बना लिया, 14-15 प्रोजेक्ट्स डाल दिए वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर। नाउ देयर विल बी पीपल अमंग यू हु आर लर्निंग थिंग्स on their own. This is really good. Now, let's talk about self-directed behavior at organizational level. So let's say, आप दोनों एक टीम में? नहीं, you don't know each other. Do you? So let's say ये सारी टीम है ना, मैं जाता हूँ टीम के बाद, टीम ने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाया, कहता हूँ यार वो कस्टमर है, वो उसको मुसीबत पड़ गई है, फीचर काम नहीं कर रहा। मैं आपके साथ बहस करता हूँ, आप कहते हैं हाँ यार कामरान भाई आप ठीक कह रहे हैं, ये तो मसला है। मैं कहता हूँ यार जल्दी जल्दी शाबाश इसको निकालो, बग फिक्स डिप्लॉय करते हैं। आप कहते हैं कमाल भाई ओवैस भाई से तो मैनेजर है, उनसे बात कर लें। इसका मतलब है ओवैस ने तुम लोगों को इनेबल नहीं किया कि तुम ये डिसीजन ले सको। हाँ $1 million, $1 billion की डिसीजन है वो ओवैस लेगा, लेकिन ये छोटी मोटी डिसीजन है, ये आप लोगों को खुद इनेबल होने चाहिए, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कि जेफ बीजोस गया अपने अमेज़ॉन का जो फाउंडर है, ही वेंट टू द वेयर हाउस इज़ वेयर दे हैव ऑल द इन्वेंट्री एंड देन दे शिप थिंग्स फ्रॉम देयर। तो उसने वेयर हाउस के मैनेजर कहा यार ये एक आइटम है हम बेच रहे हैं, ये वेंडर ने दिया है, ये ख़राब है, बार बार रिटर्न हो रहा है, और वेंडर को कहो ठीक करे वरना हम नहीं बेचेंगे। उसने कहा सर ये मेरी डिसीजन नहीं है, ये हेडक्वार्टर की डिसीजन है, बहुत सारे वेयर हाउस हैं। उसने कहा नहीं, यू आर क्लोजेस्ट टू इट, यू शुड मेक दिस डिसीजन। ही इनेबल्ड हिम सो दैट ही कैन नाउ मेक डिसीजन, ठीक है। तो सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर जो है ना, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो चीज़ें प्रॉपर तरीके से एक टीम को खुद लेनी चाहिए, टू डू व्हाई, सो दैट दे कैन रिएक्ट फास्ट टू द कस्टमर नीड्स।
उसमें ये ना उसके पास भी जाओ ये जाओ, तो इस कॉजेस का ना ये नहीं यूजलेस है. मैनेजर कैन, यानी मैनेजर को इन्वॉल्व होना चाहिए जब उस लेवल पे कोई डिसीजन हो. यू कैन मेक दिस डिसीजन, इट्स नॉट अ बिग डिसीजन, इट्स अ बग फिक्स, नो इशू. ठीक है, you don't have to wait for your managers or leads. Do it yourself. Go ask, and what would that mean? Why? How did Hamza do all of those things? That's actually really amazing, man. I mean, he's a sharp kid for sure, mashallah, tabarakallah. But he spent 2-3 hours every day, besides his homework and school, on this stuff. So, and he did it over, just katra katra samandar banta hai. चलें जी आगे चलते हैं. तो टाइम चेक करें. अच्छा, कितना टाइम है हमारे पास? 40 मिनट. ठीक है, आइडियली 30 मिनट में कंक्लूड करके ताकि. ठीक है, तो वो ये कहता है कि जी जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो थी ना, वाज द रिक्वायरमेंट हियर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ओवर हियर? थिंग्स चेंजिंग सो फास्ट. आज क्यूबरनेटिस है, कल कोई और चीज़ आ जाएगी, बिग डेटा है, कल कुछ और आ जाना है, एआई में आए, व्हाट नॉट, रोबोटिक्स आ जाएंगे. वो जो अभी टेस्ला ने अनाउंस करना है कि उनका अपना रोबोट आ रहा है. ठीक है, तो यू नीड टू बी continuously learning. So what you need is a dynamic learning organization. Okay, so if you want to join a good company, join a learning organization. A company with a learning culture. वो ऐसे नहीं बनता, वो बड़ी mature और अच्छी कंपनी में होता है. ठीक है, that's what I'm saying, that you have a good culture in Emumba as far as I can tell. ठीक, and what's the best way to learn? So ये जो है ना, डॉक्टर स्टीवन स्पीयर्स एक बंदा, he's a MIT professor. He did his PhD at MIT as well. ये ही इज़ रियली गुड इन ऑपरेशनल एक्सेलेंस. ऑपरेशनल एक्सेलेंस जिसको कहते हैं, पहले पता नहीं शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, एक वो बनाते थे ट्रायंगल, कहते थे ये है जी टाइम, ये है जी कॉस्ट, और ये है क्वालिटी. यू कैन नॉट गेट ऑल थ्री. You can get one. If you're really good, you'll get two. It's all bullshit now. You have to get all three, and you have to find ways to do that. Okay, and there are now ways to do that. ठीक है, तो ये भी पुरानी बातें हो गई, ये कर सकते हैं लोग, आप बड़े कूद हुए दो नहीं, हमने सारे करने हैं. इफ यू वांट टू स्टे कंपैरेटिव. ठीक है, तो द पॉइंट इज ऑपरेशनल एक्सेलेंस मीन्स यू कैन ऑपरेट at speed without sacrificing quality, keeping high quality in a cost effective way. So this is operational excellence. ठीक है, तो इसने एक बुक लिखी है डॉक्टर स्टीवन स्पीयर्स ने, उसका नाम है द हाई वेलोसिटी एज. ठीक है, तो व्हाट ही सेज इज द वे टू क्रिएट लर्निंग कल्चर इज लर्न थ्रू योर मिस्टेक्स. द बेस्ट वे टू लर्न इज थ्रू मिस्टेक्स, फेल होने से, एक्सपेरिमेंटेशन से. So when he was doing his PhD, he wanted to work with Toyota. He and his professor, in I think early 90s, wrote to Toyota saying, hey, we want to learn, you are number 1 or 2 in every vehicle category that you compete in. You produce high quality vehicles in a cost effective way and in a very high speed. How do you do that? The Toyota ne kaha, sorry, we can't tell you, because we don't know how to tell you. You have to come and experience it. So he went and did a 1 year in Toyota during his PhD. And he said, I found something amazing. The Toyota guys, you go to hey dude, you had this problem. What happened? Yeah, we tried something and it worked, but it wasn't the best. So then he pulls out his notebook, because they give them this notebook. And then we experimented with this thing, and we saw some results. And what is experimentation? It's the foundation of innovation. And they were there. We had a friend who visited Toyota in Australia for a lean training. वो कहता है वो उधर गया ना, तो वो जो एक फोरमैन था, बाबा था, वो चलता मुश्किल था, कि उसमें एनर्जी थी. वो अपने ऑफिस लेके गया, तो उसने कहा ये देखो, ये आपके पास कोई आया ना, तो कहेंगे ये देखो, ये मेरी ट्रॉफी है. नहीं, वो कहते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, इन पे हम काम कर रहे हैं, बड़े एक्साइटेड तरीके से. दिस इज देयर कल्चर. वो मैं कहता ना कि आप एक तस्वीर लगाएं, द बिगेस्ट फेलियर. ठीक है, anyways, so the best way to learn is through your mistakes. If you fire a guy who has made a mistake, basically he has learned his lesson. He's going to apply that lesson in the next job, not your place. But you're not supposed to fail continuously. You're supposed to fail fast. सीखो से अगली चीज पे जाओ. ठीक है, तो वो ये कहता है कि in order to do that, you gotta create some safe culture. यानी लीडरशिप का ये मकसद है कि हम फेलियर्स पे लोगों को ख़राब ना करें, बल्कि उनको कहें कि डोंट वरी, देयर इज नो इशू,
उसका एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, उसको कहते हैं. द मैनेजर, द लीडरशिप सिटिंग हियर, दे शुड टॉक अबाउट वल्नरेबिलिटी. यानी मैंने अभी आपको बताया हमजा का इशू है, हमजा जो है ना बड़ा इंट्रोवर्ट है, ठीक है. सो आई एम एक्चुअली गिविंग यू साइकोलॉजिकल क्यूज. You can tell me your issues as well. No issue. Oh, look at this guy. This guy Kamran can talk about his issues. Maybe we can talk about our issues as well. Okay? So this creates a safe culture. It's a psychological safety we are talking about. So formula ये है कि you should be able to see the problems as they occur. क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम छुपा रहा तो वो खराब होकर बड़ा होता जाएगा. अगर रिक्वायरमेंट में इशू आया और पकड़ा क्यूए ने तो बीच में डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन भी खराब हो गए. लेकिन अगर हमने अपने काम को ऐसे डिज़ाइन किया है कि वी कैन सी द प्रॉब्लम एज सून एज इट अकर्स, दैट्स द बेस्ट थिंग. बाय द वे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू. यू गॉट टू हैव लॉट ऑफ विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, दोस काइंड ऑफ थिंग्स बिल्ट इनटू योर सिस्टम. Once you see the problem, then he's suggesting you should come together as a teamwork to solve the problem. अब होता है कि अगर कोई आसान इशू है तो एक बंदा खुद ही जल्दी फिक्स करता है. कभी कोई बड़ा औखा हो, नेटवर्क में इशू है, डेटाबेस में इशू है, स्टोरेज में इशू है, सॉफ्टवेयर की कन्फिग्रेशन में इशू क्या है, तो समटाइम वी हैव टू डू वॉर रूम्स. दैट्स व्हाट इट मीन्स, स्वार्म टुगेदर. एंड वंस यू सॉल्व द प्रॉब्लम, इफ यू let's say you learn from somebody else how to solve the problem, you're gaining existing knowledge. If you're solving it for the very first time, you're creating new knowledge. तो डॉक्टर स्टीवन स्पीयर्स की एक प्रेजेंटेशन है जिसमें उसने अल्कोआ की एक स्टील फाउंड्री थी, उसके साथ काम करा. ये स्टील फाउंड्री होती है ना जिसमें आयरन ओर को मेल्ट करते हैं, लावा है, उसमें एक बंदा है, उसने थर्मल सूट पहना हुआ है, डंडा मार रहा है, उसमें मोल्ट बना. कहते हैं इधर इंजरी रेट था 10%, यानी 10 में से एक बंदा जख्मी होता है, कभी वो मर भी जाता है या लूला लंगड़ा हो जाएगा. तो आपको मैं इधर नौकरी दूं तो आप नहीं करेंगे, बड़ा खतरनाक है, मैंने नहीं करा. तो उसने कहा कि अब मैनेजर्स तो आके इसको ठीक नहीं कर सकते, मैनेजर तो ऑफिस में बैठा है. तो उसने कहा कि डू यू कंसिडर दिस फैक्ट्री फ्लोर वर्कर एज अ नॉलेज वर्कर. इधर तो ये बैठे हैं डॉक्टर साहब, तो आप कहेंगे यार ये नॉलेज वर्कर है, लेकिन वो जो फैक्ट्री फ्लोर वर्कर है उसको आप नॉलेज वर्कर कहेंगे. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा यार ये मैनेजमेंट इनको इजाजत दो कि व्हेन दे सी अ प्रॉब्लम, बिकॉज दे सी द प्रॉब्लम, बिकॉज दे आर देयर, द मैनेजर इज इन हिज ऑफिस, एंड अलाउ देम टू कम टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम टुगेदर एंड देन शेयर दैट नॉलेज. So if they are solving that problem for the very first time, most of the time it's going to be the first time, they are creating new knowledge. So this is a paradigm shift. वो जो factory floor worker है ना, he is a knowledge worker. ठीक है? तो समझ आई ना, paradigm shift has many dimensions. Anyways, उसके बाद जो है ना, you need to do tutorials, कोई knowledge base में wiki create कर दिया, कोई article लिख दिया, लोगों को बताया, ऐसा ये knowledge sharing मैं कर रहा हूँ अभी आपके साथ, ठीक है. And the leadership has to encourage all of that. This is the way to create a learning organization, ठीक है, which is the most important thing. Why? Because people are our greatest asset, and not only the people are your most important asset, the right people are. Because bad people eat good systems for breakfast. ठीक है, गंदे अंडे ना पार करना है. तो वो कहते हैं software is eating the world. Not that software became hungry and started eating everything. Because software is most important when it actually solves business problems. Software is expensive. If it's not solving business problem, it's very expensive. Because software, what is disrupting everything are the experiences being created. Uber Kareem जो है वही एक्सपीरियंस है. पहले हम बंद गली में बाहर जाएंगे, मेन गली में बारिश हो रही है, धूप पड़ रही है, कोई नहीं, बंदे को रोको, यार गाड़ी कैसी है, बेकार जाए, यार कितने लोग हैं, पैसे, उसको फिर लेके जाएंगे, बड़ी तकलीफ है. वही ऊबर करीम, हाँ फ़ौरन आ जाती है, गाड़ी भी अच्छी है, डिजिटल पेमेंट भी हो रही है, सिक्योर भी है, रेटिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ मज़ा हो जाए, ठीक है, स्केड्यूल भी कर सकते हैं करना, तो बड़ी अच्छा है. तो वही है, लेकिन स्मार्ट यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर एनहांस द एक्सपीरियंस. ई कॉमर्स, रिव्यूज़ भी हैं, सारा कुछ है, घर में डिलीवर हो जाएगा, ज़बरदस्त नहीं हो गया, ठीक है. तो सॉफ्टवेयर यानी डिजिटल बैंकिंग, अब ऐप्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. अभी वो मैंने ये मुझे फ़ोन है इसलिए कि मैंने कल एक गाड़ी खरीदी है अपनी फैमिली के लिए. माई फैमिली हैज़ जस्ट मूव्ड ओवर हियर, तो वो उसकी दिस माई लास्ट वर्किंग डे, तो मुझे कॉल करेंगे, यार वो आपने आना होगा, नहीं आना होगा, तो मैं फंस गया हूँ, इधर से नहीं आ सकते, देखें क्या कर रहे हैं.
The thing is, what if I could do a digital transaction for the automobile transfer? That would be so much easier, right? अब मुझे उधर एक्साइज ड्यूटी की लाइनों में लगना पड़े, ये और ख्वारी नहीं है, तो वो कहते हैं यार 5-10 हज़ार को दो, बंदा करा लेगा. That's another type of digital experience. वो बंदे का नाम सॉफ्टवेयर है. ठीक है. So every aspect of human performance, human experience that can be optimized will be optimized. You will see people will do amazing things. अब वो बंदे हमारे दोस्त हैं, वो लाहौर में लगे हैं, वो कहते हैं यार ये जो आरती मारती नहीं होते, जो किसानों से काश वाश लेते हैं फिर आगे बेचते हैं, वो अब्यूज़ भी करते हैं, उन्हें पेमेंट भी नहीं करते. कहते हैं हम सब मिडिल पार्टीज को निकाल देंगे, हम जाएंगे किसान से डायरेक्ट लेंगे, उसको पैसे देंगे, उसी से माल उठाएंगे और डायरेक्ट दुकान को बेचेंगे. ये वन स्टॉप शॉप. और पैसे किस पे बनाएंगे? मैंने पैसे किस पे बनाएंगे? थोड़े बहुत हम पैसे बनाएंगे ना, बीच में हम 1 पार्टी हैं, हमारा कमीशन हमारा वो ज़्यादा होगा, बीच में तो 2-3 पार्टियाँ हो तो हर कोई डिवाइड करता है. कहता है हुकूमत हमारे बड़ी सपोर्ट करिए क्योंकि 30-40% तो सब्जियां और फल फ्रूट ख़राब हो जाते हैं पहुँचते पहुँचते, क्योंकि हम किसान को कह रहे हैं हम तुमसे उठाएंगे अपने रेफ्रिजरेटर गाड़ियों में ये वो, और उधर तक पहुँचेंगे. वो जो 30-40% हम बचाएंगे ना, अगर लेट्स से उसमें 5%, 10%, वो हमारा प्रॉफिट. ज़बरदस्त नहीं होगी. Anyways, this is, यानी they are using, these are IT guys by the way, they have to create inventory systems just in time, all that stuff, you know. वो मेरा जो brother in law है जिसने PhD कर ली AI में, data science में, so he was working at retailer. तो ये रिटेलर भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर से दुकान को, करियाने की दुकान को बेच रहे हैं. बड़े बड़े मेट्रो तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से खरीद रहे हैं, तो बीच में होल सेलर ये आ जाए, 3-4 पार्टियां, तो उनका वही टिश्यू का डब्बा है, ये 10 रुपये पे मेट्रो बेच रहा है, वो पुरचून वाला भी 10 रुपये बेचेगा, लेकिन ये बनाएगा 5 रुपये उसके ऊपर, वो बनाएगा 1 रुपये, क्योंकि 4 रुपये बीच में कोई और खा गया. वो कहते हैं हम तुम्हें डायरेक्ट देंगे, तो तुम 4 बना लोगे अगर ये 5 बनाता है, 1 नहीं, 1 के बजाय 4. तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो बीच में? डेटा साइंस ये वो AI. कहते हैं हम जो है ना फिगर आउट कर रहे हैं कि कौन सा मैन्युफैक्चर कितनी देर में माल पहुंचाता है, क्योंकि वो उसके पास टिश्यू के डब्बे ख़त्म हो जाए तो उसको शाम को या अगले दिन चाहिए. ठीक है. और हम चाहते हैं कि वो जो मेट्रो है तो वो तो अपना बेचेगा, ये अपनी शेल्फ पे ऐसे सामान रखे, कुछ करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचे, हमारा ज़्यादा फ़ायदा होएगा, उसकी भी बिक्री होगी और लेगा तो हमसे ही ना. So anyways, so this is what he's doing. Yani software is running a lot of things. That's my point. ठीक है. So every aspect of human performance that can be optimized will be optimized. We are not a tech company. वो Bank of America को मैंने, did I give this example? Bank of America is the largest bank in US. I have 3 accounts with Bank of America since 1997. उसको 2018 में बेस्ट बैंक ऑफ द यूएस का अवार्ड मिला. तो सीईओ आके कहता है अवार्ड लेने के बाद कि वी आर नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी. कैन यू इमेजिन अ बैंक रनिंग विदाउट सॉफ्टवेयर? नो वे. ठीक है. पहले कहते ना आपका कौन सी ब्रांच में था, वो ब्रांच की बातें खत्म हो गई. मतलब ब्रांच की बात करो, क्यों चाहिए तुम्हें ब्रांच? डिजिटल है सब कुछ. क्योंकि पहले ज़माने में जब कंप्यूटर नहीं थे तो वो खाते और रजिस्टर होते थे, आपका रजिस्टर उधर था, इस वजह से वो ब्रांच का पूछते हैं आपसे. एक ट्रांजैक्शन करने के लिए कई दिन लग जाते थे. ये भी मुझे वो एक कॉल बैंक से आई थी कि यार आपने चेक लिखे हैं वो गाड़ी की पेमेंट के, हम क्लियर कर देंगे. नहीं, मैं आज प्लीज़ क्लियर कर दें. ठीक है. तो अमेरिका वाले नहीं पूछते, वो कर देते हैं चेक क्लियर. ये फ्रॉड हो जाए तो फिर आप चार्ज करते हैं. अच्छा कर रहे हैं जो पाकिस्तानी कर रहे हैं. खैर एनीवेज, वो कहते हैं आई एम नॉट अ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई एम अ टेक्नोलॉजी कंपनी. ठीक है. यानी अब कैन यू इमेजिन एन इंश्योरेंस कंपनी विदाउट software, running without software? Can you imagine a hospital running without software? Can you imagine government running without, CDA running without software? No way. वरना वो पिछली सदी में बैठे हैं. So the point is, somebody saying we are not a tech company is leadership at a company being disrupted right now. You are building a software company or losing to someone who is. Software is going to drive every business. आरती का भी बिजनेस खा गया, आरती डिसरप्ट हो जाएगा. इतने आराम से नहीं होगा कि थोड़ा टाइम लगेगा. यू आर बिल्डिंग अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लर्निंग और लूजिंग टू समवन हु इज. लर्निंग इज सस्टेनेबल एडवांटेज. लर्निंग इज चेंजिंग बिहेवियर. हमारे उस्ताद थे हमजा यूसुफ, इज अ रिलीजियस स्कॉलर.
अमेरिका में होते हैं, उनसे कई सारी क्लासेस ली, बड़ा ज़बरदस्त है। वो कहते हैं, हमारे उस्ताद ने कहा, इफ़ यू gain knowledge, you learn few things and you don't realize that you actually don't know anything, you haven't learned anything. लेकिन जब आप नॉलेज हासिल करें तो आप में ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, ठीक है। दिस इज चेंज इन बिहेवियर। वो एक बंदा था बड़ा अमीर, वो कहता है, पीर साहब मैंने आपका मुरीद बनना है, मैंने आपसे सीखना है। वो कहता है, नहीं तुम इस काबिल नहीं रहो, पड़ेगा। वो नहीं मैंने सीखना, बहुत आता है। उसने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी सारी दौलत छोड़ो और ये सामने बस्ती नज़र आ रही है, जाके ना इसमें तुमने 1 महीना गुजारना है, लेकिन तुम्हारे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, तुम उधर गुजारा करो, लोगों से मांग के तुम गुजारा करोगे, यही कर सकता है ना अगर कुछ नहीं। तो 1 महीना उसने गुजारा, वापस आया, तो क्यों उसने उसको एक्सरसाइज भेजा, टू चेंज हिज बिहेवियर, ठीक है। दैट यू नो योर मटीरियल थिंग्स दैट यू ओन डजंट मीन मच, ठीक है। तो द पॉइंट इज, इफ यू आर लर्निंग, and if you're learning anything in this session, and this should change your behavior. So learning is changing behavior. Learning is changing behavior. नहीं समझ आई तो ये बड़ी फॉन्ट में भी है। ठीक है, अच्छा अब कुछ ब्रेक ले सकते हैं या जाएं वैल्यू स्ट्रीम पे जाएं। चलो, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ना कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वैल्यू स्ट्रीम एक बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। हम आपको ना अभी जबरदस्त नई टर्मिनोलॉजी सिखा रहे हैं, ठीक है, नई दुनिया। We want to take you out from your dev box and a QA box and a UX box and make big boys out of you. तो वैल्यू स्ट्रीम एक बड़ा इंपॉर्टेंट। तो आपका कस्टमर हो शेख, वो कहे मुझे ये वैल्यू चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये फीचर चाहिए, हाँ, आप उसको वो वैल्यू दें और वो आपको पेमेंट करे। तो एवरीथिंग दैट यू डू टू क्रिएट दैट वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू स्ट्रीम। ऑल द पीपल इन्वॉल्व, ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व, ऑल द टूल्स इन्वॉल्व, ऑल द आर्टिफैक्ट्स इन्वॉल्व, जितने भी अप्रूवल हो रहे हैं, रिव्यूज हो रहे हैं, प्रोक्योरमेंट हो रहा है, हायरिंग हो रही है, ठीक है, जो भी आप करेंगे ना, उसमें चाय बन रही है जी, टीम बैठी हुई है, उसको चाय पिलाओ, ठीक है। जेनेटर है, वो आपके टॉयलेट साफ कर रहा है, अच्छे ना हो साफ तो आप कहेंगे मूड अच्छा नहीं है, तो मजा नहीं आया। प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट हो सकता है, या बीवी ने जूते मार रहे हो तो ये भी हो सकता है। तो एवरीथिंग दैट यू डू इज कॉल्ड वैल्यू स्ट्रीम। नाउ द कस्टमर विल ओनली गेट द वैल्यू व्हेन दिस इज कंप्लीटेड। एवरी पर्सन, every activity, every artifact produced is adding more and more value. तो कहते हैं ना, प्रोसेस आपका लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, तो as you go from here to here, the value is growing, ठीक है। and all these things should add more value. अगर कोई चीज बंदा वैल्यू नहीं डाल रहा, ऐसे ही बैठा हुआ है, अप्रूवल ठप्पे लगा रहा है, he is not adding value, remove him, he is wastage. अगर कोई एक्टिविटी एक्चुअली वैल्यू को रिड्यूस कर रही है, ओह ये तो बहुत ही खतरनाक है। वो बंदा बैठा है, वो पीछे, वो जो है ना, वो ऐसे घपले कर रहा है कि वो खराब हो रही है चीज, आपकी तरफ ऐसे पीछे बैठे है, तो वो तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है ना, उसको तो फौरन निकाल दो। तो लीन में उन्होंने इस वेस्टेज की ना साइंस बना दी। उन्होंने हर इंडस्ट्री के लिए उसको कॉन्टेक्चुअलाइज भी कर दिया। तो आईटी के लिए उन्होंने कहा, यार ये सबसे बड़ी वेस्टेज है, आसान देख लेते हैं, डिफेक्ट। इमेजिन यू आर सो कूल, यू नेवर प्रोड्यूस डिफेक्ट्स। रिक्वायरमेंट्स में, डिजाइन में, कोड में, टेस्ट केसेस, डिफेक्ट्स हैं, सारा बड़ा टाइम बचेगा, क्यूए वाले आपको दुआएं देंगे, ठीक है। हाउ कैन यू डू दैट? कैन यू डू दैट? मे बी कैन वी यूज टेक्निक्स, methodologies to do that. तो एक बंदा है, उसका नाम है केपर जोन्स, नाम सुना है? कौन सी यूनिवर्सिटी में से पढ़े हुए यार? केपर जोन बाबा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ठीक है। व्हाट ही डिड वाज, ये उसका रिसर्च पेपर है, ही लुक्ड एट अ बंच ऑफ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। और उसने क्या किया कि 40 पॉइंट स्केल बनाया, +20 से -20 तक जाता था। +20 बेस्ट प्रैक्टिस, -20 वर्स्ट प्रैक्टिस।
और उसने वो तमाम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिसेस थी ना उनको रैंक कर दिया। नंबर 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस क्या थी? रीयूज। ठीक है, कोई भी चीज रीयूज कर लें, रिक्वायरमेंट्स रीयूज कर लें, कोड रीयूज कर लें, लाइब्रेरी रीयूज कर लें, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को रीयूज कर लें, एपीआई को रीयूज कर लें, सर्विस को रीयूज कर लें, बहुत सारी रीयूजेबिलिटी है। आजकल तो एपीआई और सर्विस रीयूज का ज़्यादा हुआ है। ठीक है, लेकिन यू रीयूज एनीथिंग। ठीक है, व्हाट इज रीयूज? Reuse basically means you're reusing a tried and tested high quality thing over time. The more you use it, the more mature it becomes. ठीक है? What is the second number 2 best practice? है? हाँ, guess करें। जो guess कर लेगा उसको इनाम मिलेगा। ये फोन आपका होगा। हाँ? क्या? अपडेट? इसका क्या मतलब है? प्रैक्टिस। अपडेट। प्रैक्टिस, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। अपडेट का क्या मतलब है? अपडेट व्हाट? या नहीं, वो नहीं है जो मैं व्हाटएवर यू सेइंग, इट इज नॉट दैट। ओके, कोई और। सॉरी, फोन तो ऑफ हो गया। क्वालिटी मतलब टेस्टिंग। प्रैक्टिस का नाम बताएं ना, क्वालिटी से क्या मुराद है? आप कहें यार क्वालिटी टेस्टिंग, नो फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, आप कहें एजाइल, आप कहें स्क्रम प्रैक्टिस है, आप कहें जी डेली स्टैंडअप्स, ये कह सकते हैं, आप कहें जी बैकलॉग को मेंटेन करना, इस तरह की चीज़ें, तो लोगों को रिवॉर्ड देना, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। हाँ, मॉड्यूलैरिटी नहीं, ये भी नहीं है। होगी बाय द वे, ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन नंबर 2 नहीं है। नंबर 2 है इंस्पेक्शन, generally speaking, which can mean reviews, code reviews, requirements review, formal reviews, informal reviews. Pair programming is type of a review. ठीक है, वो बंदा बैठा हुआ है constantly reviewing होगा। वो मैंने इलॉन मस्क का कहा, पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, एक ड्राइवर है वो कर रहा है, बाकी उसको हेल्प कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो ड्राइवर चेंज करते रहते हैं वो, यानी द गाय हु ड्राइविंग द एक्टिविटी। ठीक है, तो इंस्पेक्शन यानी यू कैन, यानी reviews can be those things, requirements review, design review, code review, test case review, all those kind of things. Okay, so inspection is an awesome thing to do. Anyways, so we talked about defects, extra features nobody's going to use. So active backlog के जरिए आप उसको remove कर सकते हैं। ठीक है, partially done work we talked about it with, right? All of these things. So you identify all of these wastages through your value stream, and your goal is to remove them to optimize the flow of the value, ताकि आप जल्दी जल्दी चीज़ें करें, फ्लो तेज हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक टिपिकल प्रॉब्लम बताता हूँ, हमारी कंपनी में भी था और ये और जगहों पे भी है। तो डेवलपमेंट की टीम कहती है, सर हम तो बड़े कूल हैं, हम ना ऐसे स्प्रिंटें निकालते हैं। ये देखें, ये क्यूए वाले तो कह रहे ये हमेशा 3-4 स्प्रिंटें पीछे होते हैं। ठीक है, लेकिन यार उसका फायदा क्या है? भाई तो ये हर जगह, हर कंपनी में मैंने देखा, मैं हमारी अपनी कंपनी में था, और डेव मैनेजर ये बातें करता था, कहते यार एक पेड़ लगाया इसमें, तो कस्टमर तो इधर बैठा है, उसको क्या काम है कि तुम्हारी स्प्रिंट तेज है कि नहीं, उसको तो चीज सर्टिफाइड चाहिए, टेस्टेड चाहिए। तो वो जो तुम्हारे भाई हैं क्यूए में, उनके लिए उनकी हेल्प करो। इफ यू आर फास्टर देन एवरीबडी एल्स, नोबडी विंस। ठीक है, इस तरह मियां बीवी लड़ रहे हैं, ठीक है, मैं पहले, तो भाई दोनों एक ही घर हो। ठीक है, तुम जीत गई तो यार वो उसको हरा दिया तो कोई फायदा तो कोई नहीं हुआ। बड़े घरेलू मसला चल रहे हैं यार, क्या करूं। खैर, सो द पॉइंट इज व्हाट मैटर्स इज वैल्यू स्ट्रीम। ठीक है, नाउ ये तो मैंने आपको डेव और क्यूए की एग्जांपल दी, तो आपको आराम से समझ आ जाएगी। यानी नाउ यू शुड हैव ग्लोबल थिंकिंग, they call it system thinking. This is a term used. Value stream thinking. ठीक है, you think about the whole system, the performance of the whole system, not your silo, not your function. Because what matters is the whole. If you're optimizing a particular step, it should better improve the overall cycle.
overall value stream, overall system performance. Otherwise, it's questionable. Okay? So you should have this global thinking, system thinking, value stream thinking. Very, very critical. So I'll give you another example. Let's say, testing के ऊपर, how can you design? The design should support the testability, because certain designs are highly testable. Like for example, service-oriented architecture, API-first design, this is all service orientation, are highly testable. API-first design से आप लोग familiar हैं? So when you're designing your system, you're thinking about the APIs and the services first. APIs are just a contract for your services. ठीक है? So you're thinking about your services first, and you implement those. They become your fundamental building blocks. Now you can build a mobile app, web app, कुछ भी आप बना सकते हैं. ठीक है? Now the good thing is, here is the testability part. APIs don't change that much, and it's a contract. And when you test APIs, you can't really do manual testing. You have to do automated testing, and it's not that difficult. I'll tell you a very powerful story. When I was in IBM in 2006, we acquired a company in Canada called DWL. ठीक है? तो DWL जो थी ना, वो सर Master Data Management for Customer. So basically CRM on steroids. यार ज़बरदस्त कंपनी थी. उस वक्त ना सर्विस ओरिएंटेशन, APIs, ये चीज़ें नहीं थी कॉमन. उन्होंने लेट 90s में आर्किटेक्चर बनाया था सर्विस ओरिएंटेड. उनका जो था ना, वो इतने स्ट्रीमलाइन थे कि उनका एनालिस्ट जो था ना, वो रिक्वायरमेंट्स जब गैदर करता था तो उसको सिंथेसाइज करके वो कहता है ये एक सर्विस नहीं बनेगी या एग्जिस्टिंग सर्विस एनहांस होएगी. यहाँ तक कि उस ज़माने में तो SOA का नाम ही नहीं था. माइक्रो सर्विस तो अभी आई हैं. टूल्स भी नहीं थे. उन्होंने अपना टूल लिखा था एक्सेल बेस्ड. सर्विस का नाम, इनपुट पैरामीटर, एक्सपेक्टेड आउटपुट, और वो फिर वो टूल चलाते थे. वो एक्सेल पढ़ता था और टेस्ट केस चलाता था. यहाँ तक कि जब एनालिस्ट अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखता था तो ही सपोज टू प्रोवाइड हैप्पी सिनेरियोज. हैप्पी सिनेरियोज जो है ना, वो डेव ने पास करने होते हैं बिफोर दे गिव इट टू QA, वेयर दे कैन डू बाउंड्री, नेगेटिव, फुल कवरेज टेस्टिंग. ठीक है ना? तो वो जो था वो वर्ड में नहीं लिखते थे, वो डायरेक्टली एक्सेल शीट के अंदर हैप्पी सिनेरियोज लिखते थे. पास कराती थी और QA वाले उसी एक्सेल को एक्सटेंड करके नेगेटिव बाउंड्री कंडीशंस ऐड कर देते फॉर फुल कवरेज. ऑसम, जबरदस्त कंपनी थी वो, एंड क्वालिटी बेहतरीन. हम अपनी MDM सेगमेंट में मैं था तो वी यूज्ड टू रिव्यू विद द VP ऑफ सपोर्ट कि हमारे तमाम प्रोडक्ट्स के इश्यूज कितने हमारे होते थे, सैकड़ों में. उनके पूरे साल में 10-15. और कस्टमर बैंक ऑफ अमेरिका, बड़ी बड़ी कंपनियां. तो ऑसम उनका वो था, यानी दे रियली सॉलिडिफाइड. सो आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन द वैल्यू स्ट्रीम. वैल्यू स्ट्रीम यानी Emumba की वैल्यू स्ट्रीम्स क्या हैं? आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? ठीक है, लेट्स से योर फिनटेक प्रोडक्ट, दैट्स अ वैल्यू स्ट्रीम. मे बी इट्स अ portfolio of value streams. Okay? Your DevOps, your network products, they are all separate value streams. Now, each one of you exists in ilm. You have a job because of that value stream. That's earning your paycheck. In fact, the T-boy, his salary is also coming from these value streams. The HR people, their job is there because they only exist because of these value streams. Now, here is the thing. Do they know this or not? वो जो HR का बंदा hiring कर रहा है, does he know he's hiring for the value stream? And which value stream? And how quickly he can hire and hire the right guy will really help the value stream. ठीक है? Procurement में जो बंदा है, does he know or not? Because if he knows, then he will do a better job. वरना procurement वाला मैं तो सर जी PO, purchase order थे, good receive थे, मेरा तो काम ये है. लेकिन अगर उसका विजन अलाइंड होगा कॉर्पोरेट विजन के साथ और वैल्यू स्ट्रीम के विजन्स के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा. ठीक है? वो प्रॉपर अलाइनमेंट आएगी उसमें. ठीक है? तो आप तो लोग तो डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो ना वैल्यू स्ट्रीम में, यू आर अ डेवलपर, सो यू गोटा हैव द फुल व्यू ऑफ द वैल्यू स्ट्रीम. ठीक है? इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं.
this is, once, each one of these horizontal line is a value stream, is a product or a service. हमने कहा ना मेरी कंपनी में 150 production services चल रही हैं. We have 150 product streams, ठीक है? Value streams. Now this builds your value stream network. Now we are, by the way, talking about work done by Dr. Engr. ठीक है? If this is flow framework, it's very powerful. If you apply a high level process to it, आपका कोई आइडिया था, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल उसका चल रहा है, तो ये जो आपकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, दिस मेक्स योर प्रोडक्ट मॉडल. You have lot of activities that you do and they are producing artifacts that creates your artifact network. ठीक है, आपकी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स ये चीज़ें बनती जा रही हैं, आप बहुत सारे टूल्स यूज़ कर रहे हैं, that creates your tool network and they should be all integrated together. Now what we are trying to do is you're trying to create a system, an actual system. I'll give you examples of it. This is not theoretical. This is an actual system where you are trying to connect 4 things together. The people involved in the value stream, the processes, the tools and the artifact. ठीक है? So once you do that, the discussion changes. You can actually figure out at the value stream level how the different value streams are aligned together. What is the traceability between my artifacts? You can do traceability measurement. ठीक है? You can do some level of connectivity measurement between your tools. ठीक है? To figure out whether these things build a proper system or not. आपकी ना discussion ही change हो जाती है. Instead of talking about development velocity, no, you talk about flow velocity. अच्छा, so now you don't talk about only development velocity or now you talk about flow velocity, value stream flow. ठीक है? Flow velocity, flow load का मतलब है कि how many features you can deliver. Like this team, you're so cool, you can do more work versus same size of team, but they are not able to deliver as much because you are so streamlined, you have more skills or whatever, you have nice chemistry between, nice teamwork. ठीक है? So that's called flow load, flow time, how quickly, what's the time it takes. And now you can actually, because now you're working at the value stream level, overall level, you can connect that with the business results. At the end of the day, business matters. How much revenue you are generating, what's your profitability, what's your cost, what's the quality, what's the customer satisfaction and happiness level, stuff like that, right? Okay, so this is what we call system thinking or value stream thinking. You are really focused on the performance of the entire system. But in order to do that, you need to know how the system works. अब डेव के बंदे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हायरिंग का क्या इम्पैक्ट है आपके ऊपर, ना सिर्फ ये कि क्यूए का या रिक्वायरमेंट्स का या और चीज़ों का आपको पता होना चाहिए. मिसाल के तौर पे आप डिप्लॉय करते हो क्लाउड पे अपने सॉल्यूशंस, ठीक है, मोस्ट लाइकली. तो क्लाउड का जो बंदा है आपका एक्सपर्ट है, वो जब उसको सपोर्ट कर रहा है तो सपोर्टिव, जैसे मैंने टेस्टेबिलिटी की बात की थी, आपने सपोर्टेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, आप लॉग्स प्रोड्यूस कर रहे हो प्रॉपर तरीके से कि वो उसको पता यार ये इशू आया है, उसमें लॉग में कोई इन्फॉर्मेशन तो बनेगी, मैं उसको ट्रबल शूट कर सकूँ लेवल 1 लेवल 2 के सपोर्ट के लेवल पे. ठीक है, तो यू हैव टू थिंक थ्रू ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है, तो बाय द वे द कोर फंक्शन इज यानी कैपेबिलिटी इज डेवलपमेंट. So you will see in dev, there is a DevOps world, there is a big issue. They call it cognitive overload. वो कह रहे हैं shift left का मतलब आता है आपको? Who's familiar with the terminology shift left? Who is not familiar with shift left the terminology? शर्म ना करें, हाथ पकड़ करें, सबको फायर कर दे यार, ये सारे बेकार. Shift left. Shift left. चलो घरों को जाओ. Shift left का मतलब when you draw a process, you draw a process from left to right. जो चीज़ सबसे आखिर में हो रही होगी वो खतरे में है. जितना आप उसको लेफ्ट पे पुश कर सकते हो तो अच्छा है. लेफ्ट पे क्या एक्टिविटी होती है? रिक्वायरमेंट डिजाइन के बाद कोड हो रहा होता है. ठीक है, तो कोडिंग में एट दैट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज इफ यू कैन टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी रियली गुड. ठीक है, तो टेस्टेबिलिटी को कोडिंग में अगर हम ले जाएं, इसका मतलब वो जो मैंने आपको कहा था, यूनिट टेस्ट हो सकता है, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट हो सकती है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट हो सकती है, यूनिट टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें उसमें हैं. पेयर प्रोग्रामिंग हो सकती है, रिव्यूज़, कोड रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें शिफ्ट लेफ्ट करें जितना कर सकते हैं. इसी तरह बात क्या कर रहा था मैं, मुझे भूल गई. हाँ, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू शिफ्ट लेफ्ट, जिम्मेदारी किसके ऊपर जा रही है ज़्यादा? जिसको जो है ना वो गधा जिसके ऊपर हम सारा लोड डाल रहे हैं वो है डेवलपर. घोड़ा घोड़ा. ठीक है, ठीक है, और उसके बीच में खच्चर भी आता है, लेकिन खैर घोड़ा मुझे.
तो वो जो घोड़ा है ना जिसके ऊपर हम वो हो गया है, उसको कहता है आप सिक्योरिटी पे भी शिफ्ट लेफ्ट करें, टेस्टेबिलिटी पे भी करें, सर्विसेबिलिटी पे भी करें, ऑब्जर्वेबिलिटी पे भी करें। भाई तो ये हम ये सारी करते थे, ऐसी बात नहीं है कोई मुमकिन, लेकिन नाउ ही हैज टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये डेवलपमेंट जो है ना उसका ना फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक का ये मतलब नहीं है कि मोबाइल भी बनाता हूँ, बैक एंड भी बनाता हूँ, उसका ये मतलब कि ये सारी चीज़ें भी करें। तो उसके ऊपर ना लोड बहुत ज़्यादा आ गया, वो कह रहा है यार मैं तो बस हो गई यार, मैं कितना करूँ मैं। इसको कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड, एंड इट्स एक्चुअली अ रियल प्रॉब्लम। So they are trying to figure out solutions for it. There's a pattern that we are following, and we get specialized people to take care of some of those things, to help them so that they are not overloaded. Anyways, this is a problem to be solved. In any case, you need to have a deep understanding of how the work flows through the whole value stream. आप सिर्फ एक silos में नहीं बैठ सकते, आपने all-rounded वो बनना है. You need to learn these things as well. You need to have a profound understanding of the whole system. If you're making improvements in one area, it better improve the overall thing as well. Otherwise, okay, it can be an isolated thing. It should help with the overall somehow. Okay? And the rework, the wastage should be visible at the source. Anyways, let's move forward. I think I'll stop here. क्या ख्याल है? Almost time भी हो गया. कुछ सवाल? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मतलब जो हमारा जर्नी अभी में रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का, हाँ. सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल in terms of people adoption क्या है? What has been the most difficult change to implement? हाँ. And likewise, what has been the most impactful change that got implemented? ये जो यानी so what did we talk about today? तो मैं थोड़ा सा एक तरह जवाब. We are talking about how to create high performing organizations. We are talking about how we can connect people, process, tools and artifacts. Okay? एक और चीज़ कंप्लीट बड़ी पावरफुल है, बड़ी हेल्प करेगी आप लोगों को. वो ये है कि मैंने क्या बोला? People, process, tools and artifacts. ठीक है? अब मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ जी डेव में कौन से लोग होते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, आर्किटेक्ट, डेव, क्यूए, ठीक है ना, ये लोग हैं. प्रोसेस क्या है जी? स्कोप, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है, आपकी आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट्स, कोडिंग, ठीक है, कोडिंग हो रही है जी, टेस्टिंग हो रही है, ठीक है. सॉरी बड़ी गंदी राइटिंग है. टूल्स क्या हैं आपके? एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टूल्स, जिरा मेरा, इस तरह के HDLC के टूल्स होते हैं ना. फिर आपके टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, फिर आपके कोडिंग के बहुत सारी टूल्स हैं आप यूज़ करते हैं. आर्टिफैक्ट्स जी, आपकी रिक्वायरमेंट स्पेक हो गई, ठीक है, आपकी डिज़ाइन हो गई, आपकी कोड हो गया, आपके टेस्ट केसेस हो गए, आपके डिफेक्ट्स हो गए. ये जी आपका डेव है. इधर आए जी ऑपरेशंस. ऑपरेशंस में कौन होते हैं? ऑपरेशन वालों को पता होगा, हमें क्या पता. पीपल, आपका नेटवर्क का इंजीनियर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर का बंदा, साइबर सिक्योरिटी का बंदा, आपका एप्लीकेशन इंजीनियर, डेटाबेस इंजीनियर, मॉनिटरिंग का, बिजनेस ऑपरेशन है अलग से एक फील्ड है, ठीक है, केबलिंग का बंदा जो डेटा सेंटर बैठा है. इधर उनके प्रोसेस क्या हैं? RFC, रिक्वेस्ट फॉर चेंज, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट, पैचिंग फॉर सिक्योरिटी, पटरन बहुत सारे हैं. जिस तरह इधर आपके हैं, ये पूरी दूसरी दुनिया है, ठीक है. टूल्स क्या हैं? इनके यहाँ होते हैं IT सर्विस मैनेजमेंट के टूल्स, एसेट मैनेजमेंट के टूल्स, ठीक है, इनके सर्विस रिक्वेस्ट के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, इनके और बहुत सारे हैं. आर्टिफैक्ट्स, चेंज, प्रॉब्लम, इंसिडेंट, बहुत सारी और चीज़ें. अब जो ये लोग हैं इनको इधर का पूरा नहीं पता होगा, इनको इधर नहीं पता. ये एक ही वैल्यू स्ट्रीम है, वही वैल्यू स्ट्रीम है, ठीक है. नाउ व्हाई डू दीज गाइज नो अ लॉट अबाउट ईच अदर एंड व्हाई डू दे नो अ लॉट अबाउट ईच अदर? बस में एक ट्रिक है. जो ये
tools use कर रहे हैं ना यहाँ पे, they are not just tools to automate process. They are actually tools of collaboration. Jira, ServiceNow, Micro Focus Service, these are collaborative platforms. If your QA engineer is sitting in another country, oh, Abdullah, open up a defect for me. I can see Abdullah, he opened it, he's my guy who's helping me improve my quality of my code. I'm a developer, right? Instead of, hey, I hate the Abdullah. No, yeah, I should look at it, he's helping me improve the quality of the value stream, my code. So I can see Abdullah because there is a defect workflow, well-known process है. मुझे assign हो गया, मैंने fix कर दिया, कोड चेक इन कर दिया अगेंस्ट दैट डिफेक्ट. वो डिफेक्ट क्यों क्रिएट हुआ था? टेस्ट केस कोई फेल हुआ था जब उसको एग्जीक्यूट किया गया. लटरम पटरम, वेरी गुड, ठीक है. Because these two tools are mostly ALM and IT, they are separate. So they are in it. So what we should do is, like Jira has now service management, first class. In our company, we use Jira over here and we use Micro Focus Service Manager. So I'm asking my CTO, hey dude, let's move these guys over to Jira, because Jira is, I believe, is a superior platform. But there is a resistance for sure. So we have done some integration to connect the tools together. So we did implement the RFC process. पहले यहाँ से project manager जाता था, यहाँ पे RFC create करता था, लंबा चौड़ा form, सारी चीजें copy paste कर रहा है. अब हमने खत्म कर दिया. हमने वो change का process एक workflow define किया. That workflow is implemented and automated across two tools. Jira में वो request बनती है, very simple, automatically वो story सारी copy हो गई, सब quality certificate, link to the day. 23 हमने validation checks उसमें implement कर दिए, जो पहले manual हो रहे थे, ठीक है. और वो पीछे बैक एंड इंटीग्रेशन के जरिए वो वहाँ पे RFC क्रिएट हो गए, कोई मसला नहीं है. लेकिन ना हमने प्रोसेस तो इंटीग्रेट कर दिया, आर्टिफैक्ट्स को बाई डायरेक्शनल ट्रेसेबिलिटी भी लेके आ गए, टूल्स भी इंटीग्रेट हो गए, लेकिन लोग नहीं कनेक्ट हुए. वो लोग अभी भी यहाँ पे थे और यहाँ पे थे, ठीक है. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट मी एक्सपैंड दिस, जस्ट लाइक वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट these two with DevOps, okay? Now DevOps definition has expanded, because you can expand this further to HR. HR के भी आप लिखते जाएं नाम, ये वो सारे. इधर आप you can expand this to finance or procurement for that matter, ठीक है. तो अब क्या इन सबको, अब ये कहाँ काम करते हैं? ये करते हैं ERP टूल में, ठीक है ना. क्या इनकी, यानी इधर तो मैंने कहा ना वो माइक्रो फोकस को परे फेंको तो उनको जीरा पे ले आओ, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे सारे. तो कम से कम वो देख तो सकेंगे ना एक दूसरे को. जब यहाँ का सपोर्ट का इंजीनियर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना कि भाई प्रोडक्ट में एक डिफेक्ट है, हमने सब चेक कर लिया, नेटवर्क भी ठीक है, डाटाबेस सब कुछ ठीक है, ये प्रोडक्ट का ही डिफेक्ट लगता है, तो मुझे पता होगा कि यार वो मोहम्मद ने क्रिएट किया, वो मोहम्मद लेवल 2 सपोर्ट का बंदा है, जिस तरह मुझे ये पता कि अब्दुल्ला क्यूए का बंदा है, ठीक है. दिस हाउ वी गेट पीपल टू कोलैबोरेट, कमेंट्स होंगे, बैक एंड फोर्थ जाएगा सारा कुछ. अब HR वाले बंदे को भी इधर डालने की जरूरत है जो कि रिक्रूटमेंट कर, मे बी नॉट. अब हर सारी चीज तो हम जीरा में नहीं डाल सकते, लेकिन मैं आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मार्केटिंग, वी हैव दिस टीम, मार्केटिंग टीम ईमेल्स भेजती थी जब हमारी रिलीज जाती ना, तो डाउन टाइम आता था, तो वो कस्टमर को बताते भाई आधे घंटे के लिए सर्विस डाउन हो जाएगी. अब उसके पास कस्टमर की लिस्ट है. अब ये वो सारा काम ना किसी सिस्टम में नहीं है, स्प्रेडशीटों पे चल रहा था. तो हमने क्या किया कि हमने ये वर्कफ्लो जीरा में इंप्लीमेंट कर दिया. हमने उसके लिए कस्टमर का एक बाकायदा काइंड मास्टर डेटा क्रिएट किया जीरा में, एक सॉफ्टवेयर इनसाइट के नाम से. उसको हमने स्ट्रीमलाइन किया. पता लगा मार्केटिंग वाले पता नहीं किसको ईमेल भेज रहे हैं, स्ट्रीमलाइन ही नहीं था. टेम्पलेट्स भी बेकार. हमने उसकी टेम्पलेट्स बनाई ज़बरदस्त, अरेबिक, इंग्लिश एक वक्त में, और उसका हमने एक वर्कफ्लो क्रिएट कर दिया. एक बंदा इनिशिएट करेगा, रिव्यू करेगा, टक बटन दबाएगा, ईमेल चले जाएगा. ज़बरदस्त स्ट्रीम. क्या हुआ? क्योंकि वो ईमेल्स जारी थी वैल्यू स्ट्रीम से लिंक है, और वो प्रोसेस है रिलीज का, ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है. जबरदस्त तरीके से ये चीज इंटीग्रेट होगी, स्ट्रीमलाइन होगी, ठीक है. सो आई एम ट्राइंग टू एक्सपैंड योर माइंड दैट DevOps इज नाउ कनेक्टिंग एवरीथिंग टुगेदर. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज अ मॉडल इन DevOps, इट्स कॉल्ड द CAMS मॉडल. यू probably have heard about it. Okay, this is a very high level model. C stands for culture, A stands for automation, this is lean, this is measure, and this is sharing. ठीक है. Culture is 80%. We used to hear that.
वो ज़रा सॉफ्ट सी बात है, लोगों के साथ डंडा मारेंगे करेंगे, नहीं बंदे बड़े मुश्किल हैं, लोगों की ना पुरानी हैबिट्स हैं. सो कल्चरल भी एक चीज़ होती है, तो कल्चर इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, ठीक है. सो हाउ डू यू चेंज पीपल्स माइंडसेट? This is what we talked about. I said changing behavior. Remember that? So I'm trying to change your behavior. That's why we spend so much time on Carlota Perez's work. Hey, you gotta be self-driven, self-directed, like Hamza or that team that we want to enable you. And people shouldn't be coming and beating you up. Hey guys, dude, learn the new stuff. Learn that DevOps, automation. You should be doing that on your own if you want to stay relevant. Otherwise, other people will learn and you will get disrupted. The hottest fields, niche fields in IT right now is DevOps. ये cyber security, AI, machine learning, सारी पीछे हैं. DevOps is number one. Go look at the charts. We have looked at data. हम DevOps की ट्रेनिंग कराते थे internally. यार 50 बंदे वो कराई, 30 बंदे जो थे ना वो सर्टिफिकेट मेरे पास थे, वो 2-3 महीने में उन्होंने अपने रेज्यूमे अपडेट किया, बाहर जॉब ऑफर्स मिल गए. हमने कहा यार ये तो बड़ा इशू बन गया. I stopped doing that training. So, we have to find another interesting solution. We have to stay competitive. We have to retain the good guys. So culture is the biggest thing. And for that, there are many things. So culture ki ek slide actually. I should show you that slide. It's a very powerful slide. This is, again, work done by Dr. Ron Westrom. Baba, he's an organizational sociologist. आपकी शादी हुई भी? कामयाब है? जब कामयाब खतरा होता है ना, तो लोग भागते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास. क्योंकि what do psychologists? These are people who deal with individuals, couples therapy. They are not suitable to study groups of people. They're good to study individuals. The people who study groups of people, they're called sociologists. They look at social groups. So organizational sociologists, they look at organizational groups of people. So he's one of them. He is a professor in University of Chicago. You're one of the top universities, by the way. And he published a paper in 2004 where he has worked with NASA, a lot of organizations, and he defined types of culture, organizational culture. अब कहते हैं यार good culture, bad culture, but he defined them across multiple dimensions. So he defined 3. He said pathological culture. This is power oriented, very low cooperation. If somebody brings bad news, they will shoot them. Why the hell did you bring me bad news? Why are you making me look bad? So nobody brings bad news until shit hits the fan. Nobody takes responsibility. No, it's somebody else's work. Okay? If you go and try to network with other people, why did you go and talk to him? Saden, right? Saden. Let's say I'm your manager. You should ask my permission next time. Don't try to be so smart. We actively discourage you. You don't need to go talk to the other people in your value stream. I told you to go connect everything together. Hey, don't do any bridging, no networking. Novelty is crushed. If you try to do something, dude, you have a way of doing things. You're trying to be smarter than us. So this is how they try to kill it. This is bad culture. So Dr. Ron Westrom से पूछा, सर आपने इसका नाम पैथोलॉजिकल कल्चर क्यों रखा? पैथोलॉजिकल का मतलब है डिजीज्ड कल्चर. पैथोलॉजी लैब होती है ना हॉस्पिटल्स में, तो कहते हैं डिजीज कल्चर इसलिए रखा कि मेरी एक जानने वाली थी, उसका जब हस्बैंड ऑफिस जाता था ना, तो it was so bad he would feel sick in his stomach. ठीक है, अब ये घर जाएगा ना, अगर इसको बीवी जूते मारती हो तो he will feel sick going back to the home, right? Inshallah, he looks like a happy guy, he's fine. Now things improve. Now we reach what we call bureaucratic culture, which is rule-oriented. This is power-oriented, power struggle. I'm going to exert my power, and I'm going to micromanage you, and all of those things. So ये क्या करते हैं? Bureaucratic में things improve a little bit. There is some level of cooperation. I will cooperate with you, no problem. Okay, but
I'll help you, but by the way, here is my Rasi matrix. This defines my roles and responsibility. This is how I will serve you. And by the way, this is my SLA, which I have written. ठीक है, तो आप कुछ सर्विस रिक्वेस्ट ओपन करोगे, मैं देखूंगा यार 5 दिन का SLA यार रिजेक्ट हो गई, आपने फील्ड नहीं भरी, ओ यार भाई उधर कस्टमर बैठा है, ये दोबारा पता नहीं 5 दिन और लगेंगे. ठीक है, तो ये ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, आपको ना उसने फंसा दिया ब्यूरोक्रेसी में. कोई बंदा बुरी न्यूज़ लेके आया ना, पहले तो इग्नोर करेंगे, अच्छा यार वी विल डू एनालिसिस क्या, देखो यार तुमने फॉर्म नहीं सही भरा था, इस वजह से वो रह गया. तो दे यूज दीज ब्यूरोक्रेटिक टेक्निक्स. They take responsibility but narrowly defined. Here my Rasi matrix, right? You know what Rasi matrix is? किसी को नहीं पता तो हाथ खड़ा करें, नहीं फायर करेंगे यार. तो राशि का मतलब है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो आप कहना है कि यार खाना बनाना है, तो जो है ना ये बंदा जो है ना, वैसा तो आप रूममेट्स हैं, यार ये बंदा बर्तन साफ किया करेगा, ये खाना बनाएगा, वो बंदा सौदा करके आएगा. ठीक है, तो ये आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर दी. ठीक है, तो वो बड़ी स्ट्रिक्टली डिफाइन होती है. यार खाना बनाना मिलजुल के बना लेंगे, क्या बात है इसमें. ठीक है, ये भी हो सकता है. अब आप क्या नाम है आपका? फहद क्या यार, मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करूँगा, खाना मैं बनाऊँगा, सफाई भी मैं करूँगा. ठीक है, तो आप खरीदारी कर लिया करें, पैसे मैं आपको दूँगा. लेकिन एक होता है कि यार पीपल यू नो वी विल टेक केयर ऑफ बिजनेस मैन, नो नीड टू डिफाइन. लाइक आई नेवर हर्ड अबाउट राशि मैट्रिक्स टिल आई वेंट टू सऊदी अरेबिया. राशि मैट्रिक्स की बलासी. हालांकि आई हैव अ मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ठीक है, ब्रिजिंग इज टॉलरेटेड. यू गो या पूछ लिया करो यार ऐसा, ठीक है जाओ कोई मसला नहीं है. ठीक है, ज़रा ज़्यादा सारी बातें ना उनको बताना. ठीक है, ऐसे वो करेंगे. फेलियर लीड्स टू जस्टिस. अच्छा ये हेयर फेलियर लीड्स टू स्केप गोटिंग. ओ मसला खराब कर देगा, इसका कसूर है सारा, इसने किया. इन द बैड कल्चर. ओवर हेयर वी विल इन्वेस्टिगेट. ये इसने क्या हुआ. एक्चुअली हमारी कंपनी में हुआ पहली दफ़ा, एंड आई वाज शॉक्ड. वन गाय वाज फायर्ड बेसिकली बिकॉज अ बैड थिंग हैपन. लेकिन उसमें एक्चुअली सियासत आ गई थी. वो बड़े आपस में लड़ रहे थे, ब्लेम गेम चल. उन्होंने कहा जी कुर्बानी का बड़ा, एक बड़ा निकला एक छोटा निकला. मैं कहा बड़ा निकल गया, छोटे को माफ़ कर दो, उसने बड़े 13 साल मेहनत की है, मजदूरी की है, नहीं माने. तो फेलियर लीड्स टू जस्टिस, हमने निकालना है किसी को. विल मेक एग्जाम्पल. ब्यूरोक्रेटिक कल्चर. नॉवेल्टी लीड्स टू प्रॉब्लम्स. यार तुम कर रहे हो लेकिन देखो ये मुसीबत बन गई है, हमारा एक सेट तरीका है ना यार, उस पर काम करते हैं ऐसे. ठीक है, फिर आ जाती है जेनरेटिव कल्चर. जेनरेटिव का मतलब है इट्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. व्हेन स्मार्ट पीपल कैन कम टुगेदर एंड कोलैबोरेट टू generate creative solutions for the problems. You are all here to create creative solutions for your customers, right? So that's what generative culture means. High level of collaboration and cooperation. If somebody brings bad news, oh, ahlan wa sahlan. यार थोड़ी और भी information लेके आना अगली दफा ताकि हम उसको investigate कर सकें. ठीक है? Do we train them how to bring bad news? I will not only share the responsibility with you, I will share the risks as well. I'm in it to win it with you. ठीक है? Bridging is encouraged. यार जाओ यार पूरे उनके साथ ना रिलेशनशिप बनाओ ताकि हमें पता हो कि कैसे हम उनको सपोर्ट करेंगे और वो हमें कैसे सपोर्ट करेंगे. ठीक है, बल्कि मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ जाओ, बल्कि अगर तुम करोगे मैं कहूँ वेरी गुड, तुमने कमाल किया. फेलियर्स लीड टू इंक्वायरी. कोई चीज़ खराब होगी जरा देखे तो क्यों हुई है यार, इन्वेस्टिगेट ताकि अगली दफ़ा ना हो. ठीक है, नॉवेल्टी इज इम्प्लीमेंटेड. लेट्स कम अप विद न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. ठीक है, तो दिस इज तो उससे डॉक्टर रॉन वेस्टम से पूछा गया हाउ डू यू मेजर कल्चर. आप कैसे मेजर करेंगे. आप बारे में आपके जवाब सही होंगे, I'll give you what Dr. Ron Westen said. So आप मिसाल आप बताएंगे कल्चर आप कैसे मेजर करेंगे. अच्छा कल्चर है, बुरा कल्चर है, पैथोलॉजिकल है, ब्यूरोक्रेटिक है, जनरेटिव है. Yeah, kind of. Yeah. Okay. Yeah, I think do they have cooperation? Do they have सर्वे वो आ गया. PhD. हर चीज का सोल्यूशन सर्वे. वैसे बड़ा अच्छा तरीका है टूल. डॉक्टर रॉन वेस्टम ने बड़ा इंसाइटफुल जवाब दिया. कहता है द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट पर्सन has the right information at the right time to come up with the right solutions. If
in a good organization, in a generative culture, you will have sophisticated channels of communication, complete visibility and transparency, no black boxes, no gray boxes. मैंने request create की, पता नहीं कहाँ गई, पता लगा cancel हो गई approve, पता नहीं, यानी होता है ना सरकारी महकमा में बड़ा, तो that's black boxes. You don't know what's going on with it. ठीक है? तो You should ask people कि हम लोग कहाँ हैं. हाँ, तुसी किथे हो? हम जो है ना हम इधर है, इधर ऐसे समथिंग, यानी इधर नहीं है, ये थोड़ा सा इधर है. And by the way, in some smaller teams, obviously in my team, it's so cool, we are here, but लेकिन everybody is there. I mean, how many people think we are pathological and we will be fired of it? But how many people think that we are in that pathological? Okay, how many people think we're in the bureaucratic? How many people think we're in the generative? तुम you उस साइड पे ही ज़्यादा लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए तो अगला सवाल उसे पूछा गया डॉक्टर राव से, हाउ डू यू improve the culture? That's a very difficult question, by the way. But the most important thing is leadership. वो कहते हैं मुझे CEOs हायर करते हैं कि यार आओ ये देखो यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर देखो, बताओ कैसे इम्प्रूव करें. CEO खुद शैतान की झाड़ है एक्चुअली सारे मसले में, तो वो मैं उसको ये कहता हूँ तो मुझे फिर फायर कर देता है. So he used this term phrase actually. He said technical maestros, technical masters. Maestro is just a fancy term for master. It's like you need technical maestros at the top. People who know the domain. A IT company, people who know the domain. They are masters of it. You don't have to know all the nitty-gritty, but they are able to appreciate if they see your work or what you bring to him, and he is able to critique on it as well. No, yes, it's not better based on his experience, and he's able to deconstruct it and criticize, provide critical analysis. Okay? By the way, so ये भी कहा, doesn't have to be a nice guy, so you can be and still have a good culture. Yeah, and leadership has the most important role. There are other things that help. Okay? So I'll show you. I think it's here. खत्म बस यार फिर मैं ख्याल खत्म करते हैं. This is another model, by the way. I know जैसे पहले कहा था कि you want to do a full day workshop, right? So you can understand why. By the way, तो ये जो है ना, these are the capabilities. This is work done by DevOps and Research and Assessment, DORA organization, which was acquired by Google Cloud. So if you search on DORA, you will find it. And they have this research organization, collected a lot of data, surveys and whatnot. But they did predictive analysis, not just correlation analysis. So they predict all of these arrows mean that it predicts. So they identified all the capabilities you have to build to become a high-performing organization. Okay. So if you look at the culture stuff, yani for the culture, everything is helping the culture, especially this part. Okay, so you gotta have transformational leadership, which provides the vision, intellectual stimulation, recognize and reward people. It's supportive. Lean product development, how you can do work in small chunks. Do backlog and scoping. Actual do lean management, visual management, and agile and stuff. And this is a lot of CI/CD type automation. Okay? So even good processes will help you with good culture. ठीक है? अगर आपका ALM का टूल बेकार है ना, it's gonna create cultural issues. हमारा ALM और HP वो micro focus service manager are separate. It's causing cultural issues. So everything helps, adds.
but the most important thing is leadership for culture building. By the way, the CEO of a company, his number one responsibility after financials and stuff is culture, basically. Number one, he has to build a good culture. Khalas? Thank you very much. Any questions?